Just a minute. If I'm live, just give me 2 minutes, please. हाँ जी, मैं लाइव हूँ कि नहीं इस समय? Sir, you are live now. अच्छा, can I start now? Just a minute. Sorry, just give me 2 minutes. Some technical thing going on. So ठीक है, शायद दीप्ति जी नहीं आ पा रही, किसी वजह से कुछ confusion है. So I'm going to start my lecture today. Hello. Yeah, actually mine was on mute. I see. So, I see. Okay. Yes, you want to say something? You wanted to declare something? Welcome all participants on the last day of our 6 days session of Accounting Made Easy with our own Mr. Ved Bangia sir. Sir has given us very nice explanation, elaborate concepts in a very simplified manner. He had explained us everything. And we have launched our ebook and 60 hours video on Profound Mentors application, which you can download it from Google Play Store. Okay. So I request all the participants to please download the application of Profound Mentors. Secondly, I would like you to say that please WhatsApp me and please fill the Google form which we have issued. And if you have not got the Google form, please WhatsApp on my number, which I'll post it in the chat box. WhatsApp me, I'll send you the Google form. You can claim your accounting course certificate from that because we'll send you the certificate of 6 days of course on your registered mail ID. Plus, there's as we have promised on the first day of our batch that we will have many announcements for all our dear participants. So here are the announcements which we are having. That is, we are going to launch again the same batch, which is going to be absolutely free from 1st of June to 15th of June. And this is again covering the basic concepts of accounting. As at Profound Mentors, our mission and vision is to educate India, every Indian, to have the basics knowledge of accounting to handle their own financials, budgets. Anyone can join sir's class. As sir का जो समझाने का तरीका है, it's very lucid manner, very simplified. Hindi English का बहुत अच्छा combination है, and the delivery is very well understood. और जो आप सब participants के मुझे feedback मिले हैं in last 6 days, it's very encouraging for all of us. हमारी पूरी टीम के लिए सारे फीडबैक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज गिव अस योर फीडबैक एंड एक्सपीरियंस जिन्होंने नहीं दिए. वी वुड लाइक टू लिसन यू and also we would like to correct ourselves if any improvement is required, any other topics you want us to cover. So please message us. We will cover this in our next session. Next session is going to start from 1st of June, which is again going to be absolutely free. And that session will be on Profound Mentors application that we will conduct in that. As well as the third announcement is that we are coming up with 11th and 12th standard batch. So in 11th standard batch, we will be conducting on TTAS, that is Tuesday, Thursday, and Saturday. And for, on 11th batch will be on Monday, Wednesday, and Friday. And 12th standard batches will be from Tuesday, Friday, TTS. Tuesday, Thursday, Saturday. Yeah. Tuesday, Thursday, and Saturday. Classes will start on Wednesday, 16th of June. So please get yourself registered. Get the for Google form. Please WhatsApp me, which I'll share. WhatsApp me on my number, which I'll share with you. So Google form. Please fill that Google form and enroll yourself for 11th and 12th standard batches. Acha, fourth announcement: this 12th standard batch will be free online to all our registered dear students at a very, very nominal price, that is ₹999. It's such a, at this cost will make this 11th and 12th, per month. That is 84 rupees per month.
you will get the 11th and 12th class complete course. All the CBSE, ICSE and the MP board will be covered in that. All state boards will be covered, and student can one-to-one basis will interact with sir. We will form the batch, and in that course test series will be there, monthly test series will be there. The students who are going to attend the live classes, they will be getting 300 plus pre-recorded video lectures, ebook, massive question bank on 11th and 12th standard, plus everyday Zoom live classes at a very affordable fees, that is rupees 84 per month. I don't think anybody can offer such a good, excellent faculty with so much of experience, itna deep knowledge of the subject. आपको A to Z of accounting पूरा समझा सकते हैं सर, जो कि आपने सब सेशंस में भी देख लिया है. So I request all your spread this message and request all to join, all connect all your friends for this 11th and 12th batches. And as we are, our motto is to continuously educate everyone. So we are also coming up with professional seminars and webinars. You can visit our website, you can visit our WhatsApp, you can WhatsApp us to know about them. That is on 18th of May, we are coming up with recent amendments in Companies Act 2013 and SEBI LODR 2015. That session will be conducted by C.S. Venkat Ramanji from Navi Mumbai. He will be conducting 90-minute session to cover all the recent amendments. These amendments are very useful for statutory auditors, CAS, CS students, as well as professionals to give consultancy to their clients, to handle for corporates also. It's very important. And CS Pawan Chandak ji, the chairman of WIRC of ICSI, is the chief guest and mentoring the session with us. He is honoring us with his presence. On 19th हम एक बहुत ही अच्छा वेबिनार लेके आ रहे हैं 19th of May, that is on time management. Mr. Arvind Khinve Saraji, international corporate trainer जो हैं, he is going to join us, who had trained employees, people, corporates across the world, New Zealand, Australia, US, Canada. He had traveled across the globe and imparted his corporate training to varied people across the world. So sir is coming with us with 3 hours mind churning session on time management. This session will be conducted with sir, and this 3 hours session. See, every plan, your daily routine, all starts with time. The person with well-managed time can achieve a lot. So the topic of our 19th webinar is achieve more in less, make every moment count. I request you all that please register yourself for this session. 3-hour session is going to be a life-changing session for you, because we all struggle with time. हम सभी को समय की बहुत बड़ी समस्या रहती है. तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा सेशन हम लेके आ रहे हैं. Arvind ji is a very experienced person in this, and इस टॉपिक में हम काफी सारी चीजें, मल्टीटास्किंग, टाइम सेविंग और declutter your mind, lot of things we are going to cover in this 3-hour session. Or one-to-one basis pe we will do the counseling on one-to-one basis to all the participants, try to understand their individual problems with related to time. So I request you register all for 18th and 19th sessions, and for details of that you can join our WhatsApp group to be in regular touch with us, join our Telegram channel, join us on follow us on Facebook, Instagram, Facebook page we have. So happy learning to all of you, and definitely Profound Mentors is committed to make a turnaround in your life, to make your life to the next level. Thank you very much. So here we start with our own Mr. Ved sir's
session today, the last session of the sir, and all the best to all of you. Thank you. थैंक यू दीप्ति जी। अच्छा, साथ में कह रहा अगर टाइम मैनेजमेंट का तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जरूर कीजिए, क्योंकि जिसको टाइम मैनेजमेंट आ गया तो आधी तो लाइफ की उसकी वैसे ही क्या बोलते हैं विक्ट्री होगी उसकी। और दूसरी बात है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वॉइस मैसेज दीजिए, टेक्स्ट मैसेज दीजिए, वीडियो मैसेज दीजिए, मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। दूसरी बात अभी दीप्ति जी कह रही थी, क्योंकि कुछ लोग क्योंकि इसमें से आप कुछ प्रोफेशनल्स बैठे हैं उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो सिर्फ 1 वीक के क्लास ही अटेंड कर पाएंगे। पर मैं ये जो क्लासेज है इन्हें कंटिन्यू कर रहा हूँ 1 वीक मोर। तो अगर आप में से जो 11th के स्टूडेंट्स हैं या जो अकाउंटेंसी या अगर और भी हैं तो दे कैन कंटिन्यू। आजकल वैसे भी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो घर में बैठ के इसका फायदा उठाइए ना आप। फिलहाल ये मेरी बेसिक क्लासेज अभी 1 वीक और चलेंगी, इवन कल संडे को भी होगी क्लास, क्योंकि मिनिमम 20 आवर्स तो बेसिक के देने चाहिए, स्टूडेंट्स को थोड़ा और समझ आ जाएगा। हाँ, जिन्होंने थोड़ा सा आइडिया लेना था उनको डेबिट क्रेडिट और इक्वेशंस वगैरह थोड़ी टेक्निकल टर्म्स पता लग गई होंगी। पर 11th वाले जो अकाउंटेंसी पढ़ने जा रहे हैं एडवांस लेवल पे, उनके लिए तो ये काफ़ी नहीं है, उनको तो बेसिक्स अभी कुछ और सीखने हैं, उनको तो बड़ा लंबा रास्ता तय करना है। फिलहाल ये क्लासेस नेक्स्ट वीक भी चलेंगी इसी टाइम पे 5:30 to 7 ये चलती रहेंगी क्लासेस ऐसे करके। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कंटिन्यू। पर अगर आप बिजी हैं कहीं जैसे वैसे, अगर आपने 1 हफ्ते का टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच। पर 11th के स्टूडेंट्स अभी दे कांट डिसकंटिन्यू, दे हैव टू कंटिन्यू। एनीहाउ, जर्नल एंट्रीज एपिसोड नंबर 12, द सिचुएशन व्हेन द गुड्स आर गोइंग आउट बट नॉट एज सेल्स। अब अभी हम बात कर रहे थे कि जब हम परचेजेस करते हैं तो गुड्स आती हैं हमारे पास, जिन्हें हम परचेजेस बोलते हैं, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो। और हमारी शॉप से माल आउट भी तो होता है। आउट कब होता है? जब कोई कस्टमर आता है खरीदने। तो जनरली लोगों का ये इंप्रेशन होता है कि जो माल या गुड्स या स्टॉक दुकान से जो आउट होता है वो तभी होता है जब कस्टमर को बेचते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। और भी बड़ी सिचुएशंस होती हैं व्हेन द गुड्स आर आउट। फॉर एग्जांपल, गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज एट ड्राइंग्स। तभी तो दुकान से माल गायब हो जाता है ना, जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाता है, जैसे ड्राइंग्स बोलते हैं। और गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी, गिफ्ट्स और एडवर्टीजमेंट एटसेट्रा। कई बार ऐसा भी तो होता है, कई आपने देखा होगा, कई लोग दुकान, अगर सपोज मैं बुक शॉप चला रहा हूँ और मुझे कोई कहता है कि कुछ हम जो है कुछ बुक्स जो है डोनेट करने जा रहे हैं कुछ बच्चों को, तो आप भी कुछ कंट्रीब्यूशन कीजिए। मैंने कहा ठीक है, आप मेरी तरफ से 10 बुक्स ले आइए 100 रुपीज़ की, 1000 रुपीज़ की। तो मेरी 10 बुक्स गई 1000 रुपीज़ की, आउट हुई, बट उन्हें मैं सेल्स तो नहीं बोल सकता ना। और कई बार क्या होता है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट। गुड्स का लॉस भी हो जाता है किसी भी वजह से, तो वो भी उस वजह से भी गुड्स आउट होती हैं, मतलब गुड्स या स्टॉक की या माल की वैल्यू कम हो जाती है। ये 3 ऐसी सिचुएशन है जिसमें अदर देन सेल्स, माल सेल्स भी नहीं हुआ बट गुड्स भी आउट हो गया। इन सभी सिचुएशन में जनरल एंट्री में परचेजेस अकाउंट क्रिएट किया जाता है। आप जानते हो जनरल एंट्री में गुड्स अकाउंट ना डेबिट किया जाता है ना गुड्स अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। जैसे ऑनर का नाम ना डेबिट किया जाता है ना क्रेडिट किया जाता है। जब ऑनर इन्वॉल्व हो जाए जनरल एंट्री में तो या तो कैपिटल वर्ड यूज किया जाता है या ड्रॉइंग्स। और जनरल एंट्री में अगर गुड्स इन्वॉल्व हो जाए तो कभी गुड्स अकाउंट नहीं वर्ड यूज करना, या परचेजेस या सेल्स। जब माल खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, जब माल जाता है तो टू सेल्स अकाउंट, मतलब सेल्स अकाउंट क्रेडिट। पर ये जो अभी 3 सिचुएशंस बताई कि गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर एज ड्रॉइंग्स, गुड्स लॉस्ट और डैमेज्ड और गुड्स गिवन आउट एज चैरिटी एटसेट्रा, इसमें भी क्या होगा, टू सेल्स नहीं होगा, टू गुड्स नहीं होगा, टू परचेज अकाउंट होगा। मींस परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। सेल्स अकाउंट तभी क्रेडिट करते हैं जब कस्टमर को माल बेचा जाता है। अगर वैसे माल आउट हो रहा है तो टू परचेज अकाउंट होगा, मींस परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। एंड whenever the goods are out but not for sales, goods are always valued at cost price। एक बात का ध्यान रखिएगा। आज क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल मैंने दुकान खोली, मैं 100 रुपीज की किताब लेता हूं और 100 रुपीज की किताब और 200 रुपीज की बेचता हूं। व्हाट इट मीन्स कि मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है और सेलिंग प्राइस 200 रुपीज है। और आज क्या हुआ, मैं गया तो वो किताब जो है किसी को मैंने कोई किताब पता लगा कि कुछ स्टूडेंट्स आए हुए थे मेरी दुकान पे, पता लगा एक दुकान चोरी, एक बुक जो है चोरी कर ली और मुझे पता चल गया। अब ऐसा होता रहता है, कई बार हो जाता है। तो गुड्स आर लॉस्ट बाय थेफ्ट, तो मैं क्या करूंगा, जनरल एंट्री लॉस तो हो गया। आप जानते हो डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, तो क्या करूंगा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। 2
क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्या गया, गुड्स, तो टू गुड्स अकाउंट तो लिखूंगा नहीं, टू परचेजेस अकाउंट करूंगा, ठीक है कि नहीं। परचेजेस अकाउंट अब कितने पे किया जाए, 100 रुपीज पे या 200 रुपीज पे, क्योंकि उसकी कॉस्ट प्राइस 100 थी पर सेलिंग प्राइस 200 रुपीज थी। देखो जब क्रेडिट किया जाता है सेल्स को सेलिंग प्राइस पे क्रेडिट किया जाता है, इसके अलावा अगर गुड्स आउट हो रहे हैं तो कॉस्ट पे आउट क्रेडिट किया जाएगा। तो मेरी जनरल एंट्री होगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू परचेज अकाउंट 100 रुपीज, तो एट कॉस्ट किया जाता है हमेशा जनरल एंट्री। और इफ बुक्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड, जब मैं कह रहा हूं कि बुक्स मींस अकाउंटिंग बुक्स मींस द बुक ऑफ द जनरल एंट्री, क्योंकि यहाँ तो हम जनरल एंट्री बना रहे हैं ना, तो हमारे लिए तो अकाउंटिंग बुक्स का मतलब जनरल एंट्री का रजिस्टर है जिसमें हर एक ट्रांजेक्शन की हम जनरल एंट्री बनाते आ रहे हैं। व्हेन बुक्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय जनरल एंट्रीज, अकाउंटिंग साइकिल, जो अभी हम अकाउंटिंग साइकिल सीख रहे हैं, and some different opening balances are given, you are strongly advised to prepare opening balance sheet and pass the opening journal entry। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आप जानते हो कि किताबें तो लगातार चलती जाएंगी साइकिल में, पहली बार कब बंद होगी, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 23, ऐसे करके एवरी ईयर यू हैव टू क्लोज द बुक्स। सपोज ये आपकी क्लोजिंग इक्वेशन थी, बैलेंस एज ऑन 31 मार्च वर एज फॉलोज, कैपिटल 10,000 की थी, डेटर्स 2,000 के थे और क्रेडिटर्स 3,000 की थी और कैश 11,000 का था। 31 मार्च को जब आपने जो बैलेंसेस थे, सॉरी मैं थोड़ी इक्वेशन मिक्स कर रहा था, अगर आपको ये क्लोजिंग बैलेंसेस दिए जाते हैं, जस्ट अ मिनट, अभी इसको मैं नहीं करूंगा बिकॉज इट माइट मेक यू कंफ्यूज्ड, मैं इसे जनरल एंट्री के थोड़ा एंड में करूंगा। मैं इसमें ये कहा गया कि 1 अप्रैल को, जब 1 अप्रैल को ओपनिंग होती है तो आपको जितने भी डेबिट बैलेंसेस हैं बैलेंस शीट में, जितने भी एसेट साइड में, उन एसेट्स को डेबिट कर दीजिए, जैसे डेटर्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, और उसके बाद क्रेडिट क्या कर देंगे, जितने भी कैपिटल और लायबिलिटीज हैं आपकी बैलेंस शीट में उसको आप क्रेडिट कर देंगे। कहने का मतलब हुआ कि जब भी अगर आपने जर्नल एंट्रीज का साइकिल अडॉप्ट किया हुआ है तो 1 अप्रैल को आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, ओपनिंग जर्नल एंट्री। उसमें क्या किया जाएगा, जो कल बैलेंस शीट बनी थी रात को 31 मार्च को, उसी बैलेंस शीट की जर्नल एंट्री बना दी जाएगी, जितनी भी एसेट्स होंगी उनको आप डेबिट कर दीजिए और कैपिटल और लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दीजिए। जैसे सपोज आप ये कह सकते हो कि डेटर्स उस समय बैलेंस शीट में होंगे 2,000, ये आज 1 अप्रैल की मॉर्निंग है और कल 31 मार्च को क्लोजिंग हुई थी शाम को, तो कल जो बैलेंस शीट बनी थी उसमें डेटर्स थे डेबिट, डेटर्स एसेट साइड में थे 2,000 के, कैश एसेट साइड में था 11,000 का, और लायबिलिटी साइड में कैपिटल थी 10,000 की और क्रेडिटर्स थे 3,000 के। तो आपने क्या किया, एसेट्स को डेबिट कर दिया और जितनी कैपिटल एंड लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दिया, और नीचे क्या लिखा नरेशन में, बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो ओपनिंग जनरल एंट्री कुछ भी नहीं होती, जो लास्ट की कल रात की जो बैलेंस शीट थी उसकी ही ओपनिंग जर्नल एंट्री बन जाती है अगले दिन मॉर्निंग में। So whenever the goods are out but not for sales, goods are always valued at cost price, not selling price। ये हम पहले भी ये वाली बात कर चुके हैं। Now इसके बाद हम जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज, नेक्स्ट एपिसोड जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज एपिसोड नंबर 13। If the opening balances are given and you are strongly advised to prepare an opening balance sheet before making journal entries। अब अगर आप स्कूल में जाएंगे तो हो सकता है कि जर्नल एंट्रीज के अकाउंटिंग साइकिल में आपको एग्जामिनर कह दे कि वो ओपनिंग बैलेंसेस दे दे, मींस दीज वर द ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2021। क्या थे, कैश इतना था, डेटर्स इतने थे, फर्नीचर इतना था, कंप्यूटर इतना था, कैपिटल इतनी थी, क्रेडिटर्स इतने थे। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले जब 1 जनवरी को, जब आप 1 अप्रैल को जब आप नई बुक खोलते हैं जर्नल एंट्रीज की, नया रजिस्टर लेके आएंगे जर्नल एंट्रीज का, आपको रेडीमेड मिल जाएगा प्रिंटेड, तो आप हर साल जो है नया रजिस्टर लाएंगे, उस पर सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो शुरुआत होगी वो ओपनिंग जर्नल एंट्री से होगी। अगर बिजनेस पुराना चल रहा है, ओपनिंग जर्नल एंट्री के लिए आपको बैलेंस शीट होना बहुत जरूरी है। तो वो जितने ओपनिंग बैलेंसेस दिए होंगे उसकी आप एक प्लेन पेपर एक बैलेंस शीट बना लीजिए, इस साइड पर एसेट्स और इस साइड पर कैपिटल एंड लायबिलिटीज, उन दोनों को बैलेंस करके
फिर आप एक ओपनिंग जनरल एंट्री पास करेंगे। एसेट्स को डेबिट कर दिया इंडिविजुअली और लायबिलिटीज और कैपिटल को क्रेडिट कर दिए। ये पिछले एपिसोड में भी यही वाली बात कही गई थी। सो while making an opening journal entry, all assets from opening balance sheet should be debited. Capital and liabilities from opening balance sheet should be credited. अच्छा, इसमें कई चीजें हो रही है कि बार बार रिपीट हो रही हैं, उसकी एक वजह है, कुछ कंटेंट रिपीट हो रहा है, वो जानबूझ के हमने किया हुआ है, क्योंकि जो हमने वीडियोस बनाई है उसमें जितना भी नेक्स्ट वीडियो बनता है उसमें हल्का सा हम जो लास्ट वीडियो होता है प्रीवियस वीडियो का भी टच देने की कोशिश करते हैं ताकि वो दोनों कनेक्ट हो जाए। तो इसलिए ये जो जितने भी ये लिखे गया टेक्स्ट लिखा गया वो उस पर बेस्ड है, वीडियो पर बेस्ड है, इसलिए इसका रिपीटिशन हो रहा है, जबकि आपके लिए अच्छा है क्योंकि हर एक चीज बार बार रिपीट हो रही है तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी उसमें। एक बात और ध्यान रखें, इफ एनी एसेट इज लॉस्ट इट इज ट्रीटेड एज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई भी आपके एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है तो आपने एक रूल सीखा होगा ना, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एक रूल था कि नहीं? तो अगर आपकी किसी के एसेट की वैल्यू कम होती है, गोज आउट का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि वो आपका गुड्स चला गया या आपका फर्नीचर चला गया, अगर उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है तो तब भी वो उसी कैटेगरी में आता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट इन ए जनरल एंट्री। सो द एसेट शुड बी क्रेडिटेड। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं कि फर्नीचर वर्थ ₹600 वाज लॉस्ट इन फायर। 600 की सपोज हमारे पास रैक पड़ा हुआ था या चेयर पड़ी हुई थी और आग लग गई दुकान पे और वो चेयर जो है खराब हो गई, हमें फेंकनी पड़ी। सो फर्नीचर वर्थ ₹600 वाज लॉस्ट इन फायर। इसकी जनरल एंट्री बनानी है तो रूल्स क्या बनाएंगे? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। क्या आज फर्म में कोई लॉस हुआ? यस, आज लॉस हुआ। किस चीज का लॉस का नाम क्या है? लॉस बाय फायर। अब आप क्रेडिट साइड में आ जाइए। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, नहीं भाई दुकान पे आज आग लगी या इनकम वाली क्या बात है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ गया, जरूरी नहीं है कि फर्नीचर को हमने किसी को गिफ्ट किया है, इवन बैठे बैठे उसकी वैल्यू भी हो गई, हमने बाहर फेंक भी दिया, वो भी क्रेडिट व्हाट गोज आउट में आएगा, तो फर्नीचर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी जनरल एंट्री? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट एंड फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट की बजाय क्या बोलेंगे? टू फर्नीचर अकाउंट जनरल एंट्रीज में। तो लॉस बाय फायर अकाउंट, ये देख लीजिए जनरल एंट्री कैसे बनेगी। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट ₹600। और नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग फर्नीचर लॉस्ट इन फायर। So at the time of sale of any asset, not goods, sales count can never be credited. आप जानते हो जो सेल्स जो वर्ड होता है वो प्योरली गुड से रिलेटेड होता है। अगर आज मैंने दुकान से फर्नीचर बेचा, सपोज मैंने 1000 की चेयर खरीदी और जब मैं वापस आया तो बैठा तो कंफर्टेबल नहीं थी, मैंने कहा यार ये कहाँ मुसीबत पड़ गई मेरे चेयर, इट्स नॉट कंफर्टेबल, तो क्या किया जाए, चलो इसे बेच देते हैं। तो मैंने अपने पड़ोसी से बात की, यार वो चेयर मैं लाया था मुझे सूटेबल नहीं लग रही, तो कहता मेरे को दे दे। मैंने कहा तो बढ़िया, वो चेयर मैंने उसको बेच दी ₹1000 में। 1000 की लाया था और 1000 की आज बेच दी, उसे बहुत पसंद आ गई और मैंने ₹1000 उससे ले लिए। तो ये सेल ऑफ फर्नीचर है, मेरा काम बुक्स बेच रहे हैं क्योंकि मेरी बुक शॉप है। ये सेल ऑफ फर्नीचर को मैं ये नहीं बोल सकता कि डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास ₹1000 आ गया तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश काउंट हो गया, कैश काउंट डेबिट, और टू सेल्स कर दूं। भाई मैंने माल थोड़ा बेचा, बुक्स थोड़ा बेची हैं, गुड्स थोड़ा बेचा है। सेल्स जो वर्ड है सिर्फ और सिर्फ गुड्स से रिलेटेड है। अगर सेल्स गुड्स के अलावा कोई और आइटम बेच दिया दुकान से तो आप करोगे कैश काउंट डेबिट टू फर्नीचर, कैश काउंट डेबिट टू कंप्यूटर, ना कि कैश काउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स अकाउंट तो तभी क्रेडिट होगा जब आप सेल्स करेंगे, कोई गुड्स को बेचेंगे। सो ऑन द डे ऑफ क्लोजिंग द वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, जब जनरल एंट्रीज का साइकिल चलाया हुआ आपने, जनरल एंट्रीज का साइकिल आपने अडॉप्ट किया हुआ है। जनरल एंट्रीज के साइकिल में क्या अडॉप्ट किया जाता है कि हर एक ट्रांजेक्शन को जनरल एंट्रीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब आप बाजार से एक रजिस्टर लाएंगे मार्केट से और उस पर प्रिंटेड होंगी, बस अगर मैं अकाउंटेंट हूँ तो जो मेरे को बॉस बोलता जाएगा और मैं सारे नोट करता जाऊंगा, उनकी जनरल एंट्रीज बनाता जाऊंगा। जनरल एंट्रीज बनाने के बाद उसको क्या होगा, 31 मार्च वाले दिन, क्योंकि मैं अकाउंटेंट हूँ, ये मेरी ड्यूटी है, तो मैं देखूंगा दुकान पे स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, स्टॉक टेकिंग। मैंने आपको बताया था जब आप किसी स्टॉक की फिजिकल वैल्यू क्या है, कितनी फिजिकल स्ट्रेंथ है वहां पर, उन सबको अगर आप नोट करेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टॉक टेकिंग। जब आप फिजिकली आप हर एक चीज गिनना शुरू करते हैं। जनरली फिजिकल स्टॉक टेकिंग तब की जाती है जब आपका गिनने के लायक हो। अब एक अगर ग्रोसरी वाला बंदा है उसकी तो 2000 आइटम्स होती हैं, ये चने की दाल है तो ये राजमा है और ये चावल है, चावल भी 10 टाइप के हैं, तो जनरली वो स्टॉक टेकिंग नहीं करते क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है।
की जा सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर अच्छे जो शोरूम वाले जो होते हैं, सुपरमार्केट वाले हैं, वो करते हैं स्टॉक टेकिंग। पर जो जिनका माल आराम से गिना जा सकता है, जैसे बुक शॉप वाला तो स्टॉक टेकिंग करता ही होगा, पर ग्रोसरी वाले मैंने सुना नहीं, पर करते हैं तो अच्छी बात है। सो ऑन द डे ऑफ क्लोजिंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। आज 31 मार्च है, जब शटर बंद होगा, दुकान बंद होगी, हम फिजिकल स्टॉक टेकिंग करेंगे और पता लगा कि 50 शेयर का माल पड़ा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स द वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन द डे ऑफ क्लोजिंग। और डे ऑफ क्लोजिंग कौन सा होता है हमारे इंडिया में? 31 मार्च होता है। क्या क्या मैं कोई और डे ऑफ क्लोजिंग चूज कर सकता हूँ अपना बर्थडे? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको हमें भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ नहीं करती। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट कौन सा है? भारत आयकर विभाग, इंडियन मीन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वो आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप 31 दिसंबर को अपने बर्थडे वाले दिन, वैसाखी वाले दिन, ईद वाले दिन, दिवाली वाले दिन आप बुक्स क्लोज कर लो। नहीं, आप नहीं अलाउड, यू आर नॉट अलाउड। आपको 31 मार्च की बुक्स बंद करनी पड़ेगी। आप जानते हो ये वाला सिस्टम 31 मार्च वाला, दिस वाज गिवन बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स से पहले क्या होता था, हमारे यहाँ दूसरा अपना इंडियन कैलेंडर चला करता था, वो चैत और कुछ इस टाइप के जो जो भी होता है मुझे नहीं पता। ये जो हमारा कैलेंडर चल रहा है, जो 1 जनवरी और 2 जनवरी, आज आज 15 मई है, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जिसे हम कई बार इंग्लिश कैलेंडर भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में यही कैलेंडर चल रहा है, ग्रिगोरियन। तो ये ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, और उन्होंने 31 मार्च की डेट फिक्स की थी, वो भी सैकड़ों साल पहले। आज भी वही चल रही है हमारे वहां पर। नहीं तो अदरवाइज पहले हम दिवाली वाले दिन किताबें बंद किया करते थे। एनी हाउ, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज शोन एट द फुट नोट्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। मैंने आपको बताया था इस साइकिल में क्या किया जाएगा। आप बाजार से रजिस्टर लाएंगे जर्नल एंट्रीज का, उसे जर्नल भी बोला जा सकता है। कभी मौका मिले तो आप किसी मार्केट में किसी से पूछना, जो बुक सेलर्स भी बेचते हैं इसे, और नहीं हो तो कुछ और स्पेशल जो अकाउंटिंग की बुक्स बेचते हैं उनके पास होती हैं, मेरे ख्याल से आपको मिल जाएगा। किसी भी जो बुक सेलर होगा उसे आप बोल दीजिए जर्नल दे दीजिए, आप देखोगे ये जो मैंने अभी आपको फॉर्मेट बताया, ये लाइनें खिंची होंगी, तो वो जर्नल बनाई जाती हैं। तो एनी हाउ, जर्नल एंट्री सारी साल करते हैं कि 31 मार्च को आप नीचे रेड लाइन लगा देंगे, डबल लाइन की क्लोज, बुक्स आर क्लोज्ड, और नीचे आप लिख कर देंगे द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सो एंड सो। एंड द क्लोजिंग स्टॉक becomes the opening stock on the next day of the firm। आज 31 मार्च 2021 है, आज हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आई 50,000 रुपीज, और ये अगले दिन 1 अप्रैल 2021 की मॉर्निंग में जब दुकान खुलेगी तो वो हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। आज का क्लोजिंग स्टॉक अगले दिन सुबह क्या बन जाता है, उसे ओपनिंग स्टॉक बोला जाता है। सो इन ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, मैंने पहले बताया था कि फर्म्स जो होती हैं बिजनेस करने की 3 टाइप की होती हैं। ट्रेडिंग फर्म्स होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, या सर्विस फर्म्स होती हैं। ट्रेडिंग में क्या होता है कि बुक शॉप है, जैसे जैसा सामान आया ऐसे आगे पास ऑन कर दिया कस्टमर्स को। ट्रेड कर रहे हैं हम गुड्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, उसमें प्रोसेसिंग नहीं करे। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने बेकरी खोल रखी है तो व्हीट लूंगा, उसको उसका फ्लावर बनाऊंगा, उसको फिर डो बनाऊंगा, डो के बाद बेक करूंगा, फिर केक बनेगा, फिर पैक करूंगा, फिर सप्लाई करूंगा। तो आया था व्हीट की शेप में और कैसे जा रहा है केक की शेप में, वो जो गुड्स जा रही हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म होती है। वी हैव टू डील इन गुड्स। आप ट्रेडिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है, आपके पास गुड्स तो आएंगे आएंगे। गुड्स आर ऑलवेज एट द रिस्क ऑफ द लॉस, वेदर इट गो डाउन और ट्रांजिट। तो वो गुड्स 2 टाइप के होते हैं। अगर कोई लॉस हो जाता है कहीं भी हो, चाहे गोडाउन में ट्रांजिट हो, या नॉर्मल लॉस होगा या एबनॉर्मल लॉस होगा। ये हम पहले बता चुके हैं कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, इन दोनों में क्या फर्क होता है। जस्ट अ मिनट, लेट मी सी एनीथिंग। अब इसके बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप खुद इसे कर लीजिएगा घर पर। मैं तो प्रैक्टिकली नहीं कर पाऊंगा ये वाला क्वेश्चन। सॉरी, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, जर्नल एंट्रीज के बारे में मैंने इतना ही बताना था। वैसे तो बहुत कुछ बताना था, बट क्योंकि हमारा ये बड़ा कंडेंस्ड कोर्स है, शॉर्ट कोर्स है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। पर फिर भी आप हमारी अगर वीडियोस देख लेंगे, अगर ना समझ आए तो दोबारा आप वीडियो देखिए और ये बुक दोबारा पढ़ लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। अब रही बात की, अब मैं थोड़ा सा आपको जो अभी आपने जर्नल एंट्रीज का है, मैं आप मेरे को एक बार रिवाइज करने दीजिए कि अभी तक मैंने आपको क्या बताया। देखो, मैंने बताया था कि
अकाउंटिंग की जाती है उसका एक तरीका तो यह है कि आप बाजार से रजिस्टर लाइए, उस पर लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, बाजार से भी मिल जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन का, एक साइड पे कैपिटल प्लस लायबिलिटी, दूसरी साइड पे एसेट्स, जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसको प्लेस करते जाइए, पूरे साल आप प्लेस करते जाइए। उसके बाद जो लास्ट इक्वेशन होगी उस लास्ट इक्वेशन को आप टी शेप देख के बैलेंस शीट बना दीजिए, एक साइड पे एसेट्स आ जाएंगे, एक साइड पे कैपिटल और लायबिलिटी आ जाएंगे, और दूसरी साइड दूसरा क्या होगा, एक फॉर्मूला लगाइए, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस फ्रेश कैपिटल, वो आपको नेट प्रॉफिट दे देगा कि बिजनेस में इस साल कितना प्रॉफिट हुआ। वो जितना प्रॉफिट होगा उसकी जो भी परसेंटेज बनती होगी फॉर्म भरिए इनकम टैक्स का और बैंक में जमा करवा दीजिए, उसकी रसीद संभाल के रख लीजिए, और जितने भी आपने परचेजेस किए हैं, सेल्स की हैं, जितनी भी रिसीट बुक्स हैं उसको भी संभाल के रख लीजिए। इन सबको एक बंडल बनाइए, पैक कर दीजिए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डेट लीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाइए उस डेट को और अपना जनरल का रजिस्टर दिखाइए, सॉरी इक्वेशन का रजिस्टर दिखाइए, अपनी इनकम टैक्स की रसीद दिखा दीजिए और सारे वाउचर्स वगैरह दिखा दीजिए, और बैलेंस शीट और अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन जो किया वो दिखा दीजिए। वो अगर सेटिस्फाइड होगा स्टैंप लगा के वो आपको सर्टिफिकेट दे देगा कि एवरीथिंग इज ओके। तो फिर बाद में मैंने कहा कि ये वाला साइकिल जो है अकाउंटिंग इक्वेशन वाला साइकिल, इट इज नॉट अडॉप्टेड एनीवेयर। हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे अडॉप्ट नहीं, इसे अप्रूव नहीं करता, तो पर ये सिखाना जरूरी होता है स्टूडेंट्स को, बेसिक सिखाने के लिए। वहीं मैकेनिक समझ आता है एसेट्स कैसे कम हो रही है और कैसे बढ़ रही है, या लायबिलिटीज पे क्या इफेक्ट आता है। और अभी उसके बाद हमने सीखा दूसरा साइकिल कि ट्रांजेक्शन्स को जर्नल एंट्रीज में कन्वर्ट कर देंगे, और जर्नल एंट्रीज को क्या करेंगे हम, जर्नल एंट्रीज की लेजर पोस्टिंग कर देंगे जो अभी मैं सिखाने वाला हूँ, और लेजर पोस्टिंग के बेस पे ट्रायल बैलेंस बन जाएगी, ट्रायल बैलेंस के बेस पे फाइनल अकाउंट्स बन जाएंगे, और उसी फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट भी होती है और प्रॉफिट भी होता है, ये चीज होती है। तो ये जो सिस्टम था इसे डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, ये जर्नल एंट्री सीख रहे हो, क्योंकि इसमें एक पार्ट डेबिट हो रहा होता है और एक पार्ट क्रेडिट हो रहा होता है। और ये जो डेबिट क्रेडिट का मैकेनिज्म है ये एक्चुअली बनाया था 1592 में, एक इटालियन मैथमेटिशियन था, उसका नाम था लूका पशोली। लूका पशोली ने ये वाला सिस्टम बनाया था, और जिसको अभी तक आज तक हम आपको सिखा रहे हैं। सो थैंक्स टू लूका, जिसकी वजह से हम ये डबल एंट्री सिस्टम सीख रहे हैं। तो ये डबल एंट्री सिस्टम यही एक्सेप्टेबल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और कहीं नहीं है। और ये जो आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, आप अमेरिका जाइए, आप इंग्लैंड जाइए, आप न्यूजीलैंड जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, आपको यही सिस्टम चलेगा, डबल एंट्री सिस्टम मिलेगा आपको। और जितने भी आपकी जो सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन हैं अकाउंटिंग के, वो सारे डबल एंट्री सिस्टम पे चलते हैं। ये जो आप सीखने जा रहे हो, आपको मैनुअली इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। अगर आप डायरेक्टली कुछ सॉफ्टवेयर सीखने की कोशिश करते हैं या एप्लीकेशन सीखने की कोशिश करते हैं अकाउंटिंग की, तो आप कुछ स्टेज तक तो सीख जाएंगे, पर अगर आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो यू वोंट बी अ सक्सेसफुल अकाउंटेंट। तो आपको ये मैनुअल अकाउंटिंग तो सीखनी पड़ेगी। अगर आप कंप्यूटर के अकाउंटेंट भी बनना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आपको ये सीखना पड़ेगा, हर हालत में सीखना पड़ेगा। और अगर आप अपना भी बिजनेस करें तब भी आपको ये सीखना पड़ेगा, ये वाली चीज। तो ये वाला सिस्टम था। तो अभी हम सेकंड साइकिल चला रहे थे, उसमें क्या था, ट्रांजेक्शन्स को हम जनरल एंट्रीज में कन्वर्ट कर रहे थे, और अब जनरल एंट्रीज के बाद होना है लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस। ये देखिए नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस, लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस एपिसोड नंबर 1, अकाउंटिंग साइकिल ऑफ द जनरल एंट्रीज। क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स आर कन्वर्टेड इनटू जनरल एंट्रीज, journal entries are converted into ledger posting, ledger postings is converted into trial balance goes to the final accounts। ये इसका अकाउंटिंग साइकिल है। तो ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाएंगी हम सीख चुके हैं कि हर एक ट्रांजेक्शन स्प्लिट हो जाएगी, डेबिट पार्ट और क्रेडिट पार्ट, मींस डेबिट अकाउंट एंड क्रेडिट अकाउंट, और क्योंकि इसलिए इसे डबल एंट्री सिस्टम बोला जाता है। अब जर्नल एंट्री के बाद लेजर पोस्टिंग कैसे की जाएगी उसकी तैयारी चल रही है। तो ये अकाउंटिंग साइकिल की पिक्चर बनाई, आप देख लीजिएगा। और मेकिंग जर्नल एंट्री मींस, आपको थोड़ा सा रिवाइज दिलवाते हैं, फाइंडिंग आउट द डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग जर्नल एंट्रीज द लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स और आइटम्स इन्वॉल्व्ड इन जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर्ड। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आपने सपोज इस साल के दौरान, सपोज हम बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन बना लेते हैं, इस साल हमने जो बिजनेस किया उसमें सिर्फ 10 ट्रांजेक्शन्स हुई, 10 ट्रांजेक्शन्स हुई मींस सिर्फ 10 जर्नल एंट्रीज बनी। अब 10 जर्नल एंट्रीज बनी, अगर सिंपल जर्नल एंट्रीज हैं तो 10 अकाउंट्स डेबिट हुए होंगे और 10 अकाउंट्स क्रेडिट हुएंगे, मतलब 10 टाइम्स हमने कुछ डेबिट किया होगा और 10 अकाउंट्स को क्रेडिट किया होगा, यही होगा ना। तो आप क्या कीजिए, उसकी लिस्ट बनाइए आफ्टर कंप्लीटिंग द जर्नल एंट्री। जैसे सपोज पहली जर्नल एंट्री थी
कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल, फिर थी परचेजेस टू कैश, फिर थी कैश टू सेल्स। सपोज ये 3 जनरल एंट्रीज थी, तो आप क्या करोगे, आप एक पेपर उठाएंगे प्लेन और एक लिस्ट बनाएंगे कि इस साल के दौरान जितने भी जनरल एंट्रीज बनाई गई हैं, एक से स्टार्ट करेंगे, कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए। सो इन द लिस्ट ऑफ द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, no repetition of any account is done, means doubling is not permitted, as well as no account is missed। अब सुनिए जरा ध्यान से। अब सपोज मेरी 3 जनरल एंट्रीज हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इस साल के दौरान मेरे बिजनेस में सिर्फ 3 जनरल एंट्रीज हुई। अब मैं लिस्ट बनाऊंगा, पहली लिस्ट में क्या बनाऊंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 2 अकाउंट्स हो गए। पहला अकाउंट नंबर 1 कैश अकाउंट, नंबर 2 कैपिटल अकाउंट। फिर मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आऊंगा, उसमें था परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो तीसरा अकाउंट क्या होगा, परचेज अकाउंट। चौथा क्या होगा, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट तो मैं पहले लिख चुका हूं, तो उसे दोबारा नहीं लिखना, ठीक है, एक ही बार लिखा जाएगा। फिर आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट फिर रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहली लिस्ट में आ चुका है, नया क्या कर दूंगा, सेल्स अकाउंट। तो इस साल मैं देखूंगा कि इस बिजनेस में मेरे कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट। अगर मैं लिस्ट बनाऊंगा तो 4 अकाउंट निकलेंगे, कौन कौन से, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट एंड sales account. So in the list of the accounts involved, no repetition of an account is done and doubling is not permitted, as well as no account is missed. आप अकाउंट कोई मिस भी नहीं करेंगे उस लिस्ट में। अगर आपका अकाउंट मिस हो गया, फॉर एग्जांपल आपने परचेज मिस कर दिया, तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ना तो आप कोई आइटम रिपीट कर सकते हो और ना ही कोई आइटम आप मिस कर सकते हो। सो ऑल दिस लेजर्स और अकाउंट्स आइटम्स आर शोन इन टी शेप, इन्हें हम बोलेंगे लेजर्स। हम पहले क्या बोलते थे, डेबिट पार्ट, क्रेडिट पार्ट, फिर हमने क्या बोला, डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, उन्हीं आइटम्स। अब क्या बोलने जा रहे हैं, लेजर्स, मतलब ये लेजर बन जाएंगे। यही जो आइटम्स थी, कौन कौन सी, कैपिटल, कैश, कैपिटल, परचेजेस, सेल्स, 4 अकाउंट इन्वॉल्व हुए थे, तो 4 लेजर्स खुल जाएंगे। कौन कौन से लेजर्स खुलेंगे, कैश, कैश अकाउंट, कैपिटल, कैश अकाउंट का लेजर, कैपिटल अकाउंट का लेजर, परचेज अकाउंट का लेजर, सेल्स अकाउंट का लेजर, तो 4 लेजर्स खुल जाएंगे। बी केयरफुल, जब हम जनरल एंट्रीज थे तो हम बोले थे कि 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएंगे। उन पार्ट्स को हमने क्या बोलना शुरू कर दिया, अकाउंट। अब उन्हीं अकाउंट को क्या बोलना शुरू करें हम, लेजर्स। और ये भी टी शेप बनेंगे, देखेंगे हम कैसे। अभी आपके सामने फॉर्मेट आएगा, लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। जैसे ये बनेगा फॉर्मेट, देखिए आप, डेट, पहले तो ये टी शेप बनेगा, पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालिए ऊपर और बीच में एक सेंटर में एक जो है वर्टिकल लाइन डालिए, टी बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डेबिट पार्ट, और ये सॉरी लेफ्ट साइड, और ये क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट साइड में देखिए कॉलम्स क्या बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। डेट का पर्टिकुलर्स, एलएफ मींस लेजर फोलियो, और अमाउंट। फिलहाल मैं एलएफ का आपको रोल नहीं बता रहा, बाद में बताया जाएगा जब थोड़ा सा और एडवांस स्टेज पे पहुंच जाएंगे। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि एलएफ का कॉलम बनाया जाएगा, देन अमाउंट। ठीक इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे आ रही है, सेम कॉलम बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ एंड अमाउंट। ठीक है, यहां पर आप कॉर्नर में लिख देंगे डीआर, डेबिट साइड, और यहां पर राइट हैंड साइड में लिख देंगे आप सीआर, क्रेडिट साइड। मतलब जो डेबिट साइड है, जो लेफ्ट साइड है, उसे बोला जाएगा डेबिट साइड, और जो क्रेडिट साइड है, जो क्रेडिट हाफ है, जो राइट हैंड साइड हाफ, जो हाफ है, उसे बोलेंगे क्रेडिट साइड। और इस पार्ट का जो टी बनाया गया, जो लेफ्ट पार्ट है, हाफ पार्ट है, उसे बोलेंगे डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में भी कितने कॉलम बने, 1 2 3 4, यहां भी कितने बने, 1 2 3 4। तो ये 4 कॉलम्स दोनों साइड में बन जाएंगे, जो बेसिक जो होगा। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट। सो टू डेबिट इन द लेजर मीन्स टू राइट द अमाउंट ऑन द डेबिट साइड। अगर आपको ये लैंग्वेज यूज किया है कि आप कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, ये लैंग्वेज है, डेबिट द कैपिटल अकाउंट। आपको ये इंस्ट्रक्शन अगर मैं देता हूं तो आप क्या करेंगे, इसका मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में सपोज 500 लिख दीजिए। आप जानते हो ये क्या है, सपोज ये कैपिटल अकाउंट है, तो डेबिट साइड का अमाउंट कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड पे, वहां 500 लिख दीजिए। यहाँ कुछ ना कुछ तो पर्टिकुलर्स लिखेंगे, पर मेन चीज है अमाउंट वाली साइड में 500। सो टू डेबिट इन लेजर मीन्स टू राइट द अमाउंट ऑन द डेबिट साइड, अमाउंट कॉलम ऑफ द लेजर। जब भी ये अगर आपको इंस्ट्रक्शन दिया थी, ये लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज बड़ी फ्रिक्वेंटली यूज होनी शुरू होगी आपके एग्जामिनेशन में और आपके एक्सप्लेनेशन में, कि डेबिट द कैपिटल अकाउंट, डेबिट द कैपिटल अकाउंट इन द लेजर पोस्टिंग। तो इसमें मेरे इसका मीनिंग क्या होगा, डेबिट
कैपिटल अकाउंट ₹500, इट मींस आप कैपिटल अकाउंट खोलिए और डेबिट साइड में ₹500 लिख दीजिए। अगर मैं कहता हूँ क्रेडिट कैश अकाउंट बाई 300, इसका मतलब क्रेडिट कैश अकाउंट को 300 से क्रेडिट कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कैश अकाउंट खोलिए, उसकी क्रेडिट साइड में राइट हैंड साइड पे अमाउंट कॉलम में ₹300 लग दीजिए। सपोज अब ये है कि सपोज एग्जांपल है इसमें, व्हेन यू आर आस्क्ड टू डेबिट अ सैलरी अकाउंट बाय ₹1000, दैट मींस राइट ₹1000 ऑन द डेबिट साइड ऑफ टी शेप सैलरी अकाउंट। अगर आपको ये कहा जाए कि सैलरी अकाउंट को ₹1000 से ₹1000 से डेबिट कर दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि आप वो जो सैलरी टी शेप अकाउंट है, जो अभी आपने फॉर्मेट देखा, उसकी डेबिट साइड में अमाउंट कॉलम में ₹1000 लिख दीजिए। मैं अभी बताता हूँ कैसे लिखा जाएगा। सपोज अब जनरल एंट्री से हम कैसे लेजर्स में अमाउंट लिखेंगे, अब मैं ये बताने जा रहा हूँ। सपोज आपकी जनरल एंट्री थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बहुत सारी जनरल एंट्रीज थी आपकी इस साल के दौरान। सपोज 100, 200, 500 जो भी जनरल एंट्रीज बनी, हर एक जनरल एंट्री से लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है। सपोज इस साल के दौरान आपकी बुक्स में सिर्फ एक ही जनरल एंट्री हुई है और वो हुई है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, एक अकाउंट तो एक जनरल एंट्री तो नहीं बन सकती, कई बनी होंगी, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में जनरल एंट्रीज गई होंगी। सपोज जस्ट टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, क्योंकि हमने लेजर पोस्टिंग समझनी है, तो उसमें था कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹1000, ये आपकी जनरल एंट्री थी। आप जानते हो ट्रांजेक्शन से क्या किया हमने, जनरल एंट्री बना दी। जनरल एंट्री के बाद क्या करेंगे, जब कंप्लीट हो जाएंगे साथ में करेंगे लेजर पोस्टिंग। हम ये मान के चलते हैं कि ये लेजर पोस्टिंग 31 मार्च रात को कर दी जाएगी और ये सपोज अकाउंटेंट जो है आज 7 बजे दुकान बंद करेगा और रात को 12-1 बजे बैठेगा और सारी लेजर पोस्टिंग करके जाएगा। तो लेजर पोस्टिंग कैसे करेगा, वो एक तो अकाउंट खुल गया, मैंने आपको बताया था जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें लिस्ट बनेगी, तो इस जनरल एंट्री में 2 लिस्ट में 2 अकाउंट आएंगे, सैलरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट। मैंने आपको बताया था इसका प्रोसेस क्या होगा। आप जनरल एंट्रीज बनाइए, उसके बाद एक प्लेन पेपर पे आप लिस्ट बनाइए, जितने भी जनरल एंट्री में अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं एक एक करके आप लिखते जाइए, ना आपने अकाउंट रिपीट करना है ना आपने अकाउंट मिस करना है। तो इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। तो आप क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट खोल लीजिए पहले। इस जनरल एंट्री क्या बोली है, सैलरी अकाउंट डेबिट ₹1000। जनरल एंट्री क्या बोली है कि सैलरी अकाउंट 1000 से डेबिट किया गया। जनरल एंट्री में सैलरी अकाउंट 1000 से अगर डेबिट किया गया तो लेजर पोस्टिंग में भी सैलरी अकाउंट 1000 डेबिट होगा। अगर जनरल एंट्री में सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ है, आई रिपीट इट, अगर जनरल एंट्री में सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ ₹1000 से, तो सैलरी अकाउंट लेजर पोस्टिंग में भी डेबिट होगा। लेजर पोस्टिंग में डेबिट का मतलब है कि सैलरी अकाउंट का लेजर खुलेगा। आपने देखा मैंने फॉर्मेट बताया था लेजर कैसे खोला था टीचर, तो उस साइड में भी डेबिट होगा, मतलब डेबिट साइड में ही 1000 लिखा जाएगा। ये जो आपका 1000 डेबिट किया गया सैलरी अकाउंट, यही लेजर पोस्टिंग में 1000 क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा। अब ये सवाल ये उठता है कि पर्टिकुलर्स में क्या लिखा जाए, ये नरेशन होता है। इसमें वही लिखा है तो जो इसके अगेंस्ट था, जब सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा था उसके अगेंस्ट क्या था, टू कैश अकाउंट, तो ये हमने लिख दिया टू कैश अकाउंट। तो डेबिट साइड में जब भी होगा क्या लिखा जाएगा, टू कैश अकाउंट पे। आजकल कुछ जो है टीचर्स या ऑथर्स या बुक्स वगैरह टू लिखना पसंद नहीं करते, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप लेजर पोस्टिंग देखें तो टू मिसिंग हो, पर हम आपको बिल्कुल एक ट्रेडिशनल वे में सिखा रहे हैं तो टू कैश हम सिखाएंगे। तो बात समझ आ गई आपको, जब भी जितनी जनरल एंट्री में जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए हैं वो सबके लेजर्स खुलेंगे और उनका स्टेटस जो जनरल एंट्री में था वही स्टेटस लेजर पोस्टिंग में रहेगा। मींस अगर जनरल एंट्री में सैलरी अकाउंट ₹1000 से डेबिट हुआ है तो लेजर पोस्टिंग में भी सैलरी अकाउंट 1000 से डेबिट होगा। तो आपने देखा यहाँ 1000 से डेबिट हो गया। अब उसके बाद क्या था, टू कैश अकाउंट ₹1000। जनरल एंट्री में कैश अकाउंट ₹1000 से क्रेडिट हो रहा है। टू कैश अकाउंट मींस कैश अकाउंट क्रेडिट बाई ₹1000। तो उसमें क्या होगा, कैश अकाउंट नहीं, इसमें मैंने बाय द वे बनाया नहीं, जस्ट अ मिनट। तो ठीक जिस तरह से सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ ठीक इस तरीके से कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नाउ सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट था, अब हम ले रहे हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ऐसे ही खुलेगा, बिल्कुल वही फॉर्मेट है उसका। यहाँ डेबिट लिख जाएगा टॉप कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में, और ये टॉप राइट कॉर्नर में क्रेडिट लिखा जाएगा CR। और ये क्या किया, कैश अकाउंट की एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाली और बीच में क्या किया, एक वर्टिकल लाइन डाल दी, तो T बन गया। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये राइट हैंड पार्ट हो गया।
लेफ्ट हैंड साइड में 4 कॉलम बनाए, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, और ठीक इस तरह डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। और यहाँ पर क्योंकि कैश काउंट क्रेडिट हो रहा है 1000 रुपीज से, तो लेजर पोस्टिंग में भी कैश काउंट क्रेडिट होगा 1000 रुपीज से। लेजर पोस्टिंग में कैश काउंट क्रेडिट होगा, इसका मतलब कैश काउंट की क्रेडिट साइड में अमाउंट कॉलम में 1000 रुपीज लिखे जाएंगे। ये हमने लिख दिया 1000 रुपीज। अब है कि पर्टिकुलर्स में क्या लिखा जाएगा, डेट तो आप वो उठा लोगे, ये वो लिखा जाएगा जब कैश काउंट क्रेडिट हो रहा था तो उसके अगेंस्ट डेबिट क्या हो रहा था, उसके अगेंस्ट हो रहा था सैलरी अकाउंट। उसके ऑपोजिट अकाउंट क्या था, सैलरी अकाउंट। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई सैलरी अकाउंट। कैश अकाउंट में कभी भी नरेशन में कैश अकाउंट नहीं लिखा जाएगा पर्टिकुलर्स में। अगर आप सैलरी अकाउंट बना रहे हैं तो कभी भी पर्टिकुलर्स में सैलरी अकाउंट नहीं लिखा जाएगा। और कैश अकाउंट के लेजर में कभी भी ना डेबिट साइड पर ना क्रेडिट साइड पर पर्टिकुलर्स में कैश अकाउंट नहीं आएगा। ये एक सिंपल सा एक फंड है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये ढंग से लेजर पोस्टिंग की जाती है। अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे तभी आपको थोड़ा समझ आएगा। एक हल्का सा मैंने आपको आइडिया दिया है कि लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है, ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है और जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है। तो ये लेजर्स खुल गया हमारे। सो इफ एनी अमाउंट is written on the credit side of ledger, it means the account has been posted on the credit side. आप लैंग्वेज का ध्यान रखिए क्योंकि ये लैंग्वेज आगे एक चैप्टर आएगा एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन। अगर आपकी ये लैंग्वेज में परफेक्शन नहीं है तो आप एरर्स का चैप्टर नहीं कर पाएंगे आप। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि ये लैंग्वेज क्या यूज की जाती है। इफ एनी अमाउंट इज रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ लेजर, अभी आपने देखा ना कैश काउंट और कैश काउंट का लेजर था और सैलरी अकाउंट का लेजर था, आपने देखा। तो वो लेजर में हम क्या कर रहे थे कि अगर आप अमाउंट क्रेडिट साइड में लिख रहे हो राइट हैंड साइड में, तो उसे टेक्निकली क्या बोलते हैं, इट मींस दैट अकाउंट हैज बीन पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड। पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड मींस क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखा गया, ठीक है, ऑन क्रेडिट या राइट हैंड साइड ऑफ द लेजर। बाय इज यूज्ड एज ए प्रीफिक्स ऑन एवरी आइटम। आपने देखा यहां लिखा सैलरी अकाउंट, ये सैलरी अकाउंट था और सैलरी अकाउंट के हमने आगे क्या लिख दिया, बाय। बाय आजकल कुछ स्कूल्स में लिखना पसंद नहीं करते पर ट्रेडिशनली ये बाय लिखा जाता था, तो हम फिलहाल ये बाई यूज करें, बाई सैलरी अकाउंट 1000 रुपीज, ठीक है। डेबिट साइड में प्रीफिक्स क्या लगाया जाता था, टू, और क्रेडिट साइड में क्या लगाया जाता है, बाई। अब आप ये मत पूछिएगा कि बाई क्यों लिखा जाता है, टू क्यों लिखा जाता है, दिस इज द फॉर्मेट। क्योंकि ये वही वाली बात होगी कि आप इंग्लिश में अगर मैं इंग्लिश टीच कर रहा हूं तो आप बोले कि ए में ऐसे ए की 2 लाइन से नीचे की तरफ क्यों आ रही है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाती। तो ये तो जिसने भी अल्फाबेट्स बनाया हमें तो वैसे सीखने पड़ेंगे। तो ये तो हमारे लूका पशोली साहब ने ये सिस्टम बनाया, तो वैसे का वैसे हमने अडॉप्ट किया हुआ, जो मैं आगे पास ऑन कर रहा हूँ। जो लूका ने आगे सिखाया और वही टीचर से मुझे सिखाया वो मैं आगे पास ऑन कर रहा हूँ। दिस इज द सिस्टम मैकेनिज्म। तो इसमें हम जो है लॉजिक नहीं चला सकते, इसका मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। एनी हाउ अगेन डेबिट और क्रेडिट का ये हो गया। अब सपोज एक जनरल एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एक जनरल एंट्री बनाई आपने 1 अप्रैल 2019 को, किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 5000 रुपीज, ये जनरल एंट्री थी। इसकी अब लेजर पोस्टिंग करनी है। आप देखो इसमें कितने अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो एक कैपिटल अकाउंट देखें कि कैसे खुलेगा। कैपिटल अकाउंट आपने देखा टी शेप बनाया, ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या था, डेट, पर्टिकुलर, सेल्फ अमाउंट, और राइट हैंड साइड पे भी डेट, पर्टिकुलर, सेल्फ अमाउंट। तो इसमें क्या हो रहा है कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 5000 से। इस जनरल एंट्री में क्या हो रहा है, टू कैपिटल अकाउंट 5000 रुपीज। इट मींस जनरल एंट्री क्या बोली है, कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय ₹5000, और यही लैंग्वेज यहां चलेगी, कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹5000 या कैपिटल अकाउंट विल बी पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड बाय 5000। आप लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। जनरल एंट्री क्या बोली है, कैपिटल अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय ₹5000। जब कैपिटल अकाउंट का लेजर खुलेगा तभी यही बात चलेगी, कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹5000। इट मींस क्रेडिट की साइड में 5000 लिखे जाएंगे, या बोला जाएगा टेक्निकली कैपिटल अकाउंट विल बी पोस्टेड बाय ₹5000 ऑन क्रेडिट साइड। तो ये ढंग से भी लैंग्वेज यूज किया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 5000 अमाउंट लिख दीजिए यहीं से लेके जनरल एंट्री से, और यहाँ क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स। क्योंकि जब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था उससे अगेंस्ट अकाउंट कौन सा था, कैश अकाउंट, यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट। अब साथ में क्या लिख दिया जाएगा, बाई कैश अकाउंट, ठीक है। ये आप स्कूल में फॉलो कीजिए, बाई और टू आपको अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक इसी तरीके से हमने एक कैश अकाउंट खोला इसी जनरल एंट्री के बेस पे। इसमें क्या था, कैश अकाउंट डेबिट ₹5000। तो लेजर पोस्टिंग में भी क्या होगा, कैश अकाउंट का आपने लेजर खोला और कैश अकाउंट को 5000 से डेबिट कर दीजिए। कैश अकाउंट को 5000 से डेबिट कर दीजिए मींस
कैश की डेबिट साइड में 5,000 रुपीज लिख दीजिए। डेबिट साइड मीन्स अमाउंट कॉलम है। अब उसके पर्टिकुलर्स में क्या लिखा जाएगा, जब कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था तो उसके अगेंस्ट क्या था, टू कैपिटल अकाउंट, तो वो हमने टू कैपिटल अकाउंट लिख दिया, टू पर्टिकुलर्स में टू कैपिटल अकाउंट। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया होगा, नॉट परफेक्शन। सो दिस episode is over, ledger posting. Now we are going to the next episode, ledger posting. Ledger posting and trial balance, episode number 2. If any account has been debited in journal entry, the same account will be debited in the ledger posting. ये बात हमारी पहले ही हो चुकी है। जो जर्नल एंट्री में जो उसका स्टेटस होगा, जो उसका ट्रीटमेंट होगा, वही ट्रीटमेंट उसका लेजर पोस्टिंग में। अगर कैश अकाउंट जर्नल एंट्री में डेबिट हो रहा है तो लेजर पोस्टिंग में भी डेबिट होगा। आप देखोगे जैसे मैंने ये 2 अकाउंट खोले, जनरली हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट खुल जाते हैं, लेजर्स खुल जाते हैं, मैं ये कहूंगा अकाउंट्स खुल जाते हैं। जनरल एंट्री के बाद जब लिस्ट बनाई जाती है, सपोज अगर 100 अकाउंट्स इन्वॉल्व है तो आपके 100 जो है लेजर्स खुल जाएंगे। इसको आप क्या करेंगे, इसके लिए एक नया रजिस्टर लाएंगे, उस रजिस्टर पे आप लाइंस ड्रॉ करेंगे जैसे मैंने ड्रॉ की हुई है, पर कोई जरूरत नहीं, बाजार से आपको लेजर मिल जाएगा रेडीमेड। तो आप बाजार में क्या कीजिए, बाजार जाइए, वहां पर आपको मार्केट से मतलब 300-400 रुपए का एक कितना सा बड़ा सा लेजर मिल जाएगा। लेजर ही बोलिए, और बिल्कुल ऐसे की ऐसे लाइंस ड्रॉ होंगी। अगर आपको टाइम मिले तो आप देखिएगा एक बार कैसा ले, आप बोल दीजिएगा बुक शॉप वाले को कि मुझे लेजर चाहिए प्रिंटेड, तो आपको भाई मैंने अकाउंटिंग करनी है तो आपको लेजर बुक दे देगा। उस लेजर बुक में जैसे ABC पहले शुरू में पेज होंगे, मतलब आप जो है सपोज अगर आपका कैपिटल अकाउंट C में होगा ना तो उस पर पेज नंबर भी होंगे कि कैपिटल अकाउंट अगर ढूंढना हो तो आप पेज पलटते रहेंगे। तो शुरू में आप इंडेक्स में देख लेंगे, सपोज पेज नंबर 25 बोलिए तो कैपिटल अकाउंट, उसमें जो है आपने ऊपर लिखा होगा कैपिटल अकाउंट और मैनुअल आपने लिखा होगा बाई कैश और समथिंग वट एवर इट इज। अच्छा, ये जो बुक होती है जिसमें ये लेजर्स लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, 100 है या 200 वट एवर इट इज, उन्हें बोला जाता है प्रिंसिपल बुक। मतलब ये हुआ कि ट्रांजेक्शन्स को पहले जर्नल एंट्रीज में कन्वर्ट किया जाता है। एक रजिस्टर आपको जर्नल का लाना पड़ेगा और दूसरी आपको बुक लानी पड़ेगी, जैसे टेलीफोन की नोटबुक होती है वैसे आपको लेजर खरीदना पड़ेगा, वो होगी प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल बुक मीन्स द बुक ऑफ द डिफरेंट लेजर्स ऑफ द फर्म। इफ अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इन द जर्नल एंट्री, the same account will be debited in the ledger posting. दूसरी बात है कि if some account has been debited in the ledger, it means, अगर आपको ये लैंग्वेज यूज की जाए, अगर कोई कहता है कि मैंने कैपिटल अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इन द लेजर, व्हाट इट मींस, आप टेक्निकली देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसकी डेबिट साइड में अमाउंट लिखा गया है। इट मींस द अमाउंट हैज बीन रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द सेम लेजर। सो दिस वाज ledger posting episode number 2. Now I'm going to episode number 3. इसके साथ वीडियोस जरूर देखिएगा और जाके बुक भी पढ़िएगा। लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस एपिसोड नंबर 3। एक बात और है कि इसमें बैलेंस सीडी एंड क्लोजिंग बैलेंस इज वन एंड सेम थिंग। इसका मतलब यह हुआ कि जस्ट अ मिनट, इसमें थोड़ा सा कुछ समथिंग हैज बीन मिसिंग, राइट। तो जब ये आपकी लेजर पोस्टिंग हो जाएगी सारी चीजों की, तो क्या किया जाएगा, दोनों साइड के टोटल्स किए जाएंगे, क्योंकि एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। तो जरूरी नहीं है कि दोनों का साइड का टोटल इक्वल होगा। जिस साइड का टोटल कम होगा, सपोज डेबिट साइड का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल है 10,000 रुपीज और डेबिट साइड का 0 है, तो हमें दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो जो वीकर साइड होगी, चाहे वो डेबिट साइड हो या क्रेडिट साइड हो, उसमें हम अपनी तरफ से अमाउंट सप्लाई कर देंगे, उसे बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस, ताकि दोनों साइड्स का टोटल हो जाए। उसे टेक्निकली बोलते हैं लेजर्स को बैलेंस करना। लेजर्स को बैलेंस करना मींस दोनों के टोटल इक्वल कर देना, इक्वलाइज कर देना। तो दोनों साइड के टोटल तो इक्वल मिलेंगे नहीं, रेयर को एक आधा अकाउंट हो जिसके दोनों साइड के टोटल इक्वल होंगे, पर एक्चुअली होंगे नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस साइड पर एक अमाउंट सप्लाई करना पड़ेगा वीकर साइड को, और इस ढंग से लेजर क्लोज कर दिया जाएगा क्लोजिंग वाले दिन, 31 मार्च वाले दिन। और वो जो अमाउंट अपनी तरफ से सप्लाई किया जाता है उसे बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस, या उसे बोलते हैं बैलेंस सीडी। ये मैं अभी इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
फॉर एग्जाम्पल आपने सैलरी अकाउंट बनाया, यहाँ लिखा टू कैश 1000, और जब 31 मार्च आएगी, 31 मार्च को आपने ये सैलरी अकाउंट क्लोज भी करना है, तो आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड में एक अमाउंट सप्लाई कर दोगे। कितना? क्योंकि डेबिट साइड का टोटल हो गया 1000 और क्रेडिट साइड में कोई आइटम ही नहीं थी, तो क्रेडिट साइड में आप लिख दीजिए 1000 रुपीज। तो उससे क्या होगा, क्रेडिट साइड में आपने कितना अमाउंट सप्लाई किया, 1000 रुपीज। क्यों सप्लाई किया? ताकि दोनों साइड्स इक्वल हो जाए, इक्वलाइज हो जाए। इसे बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ द लेजर। बैलेंसिंग ऑफ द लेजर का मतलब है दोनों साइड्स का टोटल इक्वल करना। जो वीक साइड है अपनी तरफ से अमाउंट सप्लाई कर देना, और वहां क्या लिखा जाएगा, बाई बैलेंस सीडी, या लिखा जाएगा बाई क्लोजिंग बैलेंस, और इसे बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। आप कुछ भी टेक्निकली बोलिए, बाई बैलेंस सीडी या बाई क्लोजिंग बैलेंस। और अगर ये डेबिट साइड में लिखा होता, अगर आपको अमाउंट डेबिट साइड में सप्लाई करना पड़ता, तो आप क्या लिखते, टू बैलेंस सीडी या टू क्लोजिंग बैलेंस। सो क्लोजिंग बैलेंस और बैलेंस सीडी एक ही बात है। सीडी का बेसिकली मीनिंग होता है कैरी डाउनवर्ड। तो आपने देखा कि अकाउंट को कैसे, एट द टाइम ऑफ लेजर पोस्टिंग अकाउंट एंड लेजर आर मेंट टू बी वन एंड सेम थिंग। अगर मैं कहता हूं कि सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है, या मैं कहता हूं सैलरी लेजर को डेबिट कर दिया गया, एक ही बात है। अकाउंट और लेजर का, लेजर पोस्टिंग के समय अकाउंट वर्ड यूज किया जाए या लेजर वर्ड यूज किया जाए, दे आर वन एंड सेम थिंग। और उसके बाद क्या होता है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ डिफरेंट लेजर्स और अकाउंट्स। आप जानते हैं ढंग से, सपोज आपने जनरल एंट्रीज बनाई, जनरल एंट्रीज के बाद क्या किया आपने, लेजर पोस्टिंग की, मींस एक लिस्ट बनाई कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो अकाउंट बनाए और उन सबके टी शेप लेजर्स खोल दिए। कैसा फॉर्मेट होता है वो मैं बता चुका हूँ। तो आप वहां से उसके बाद लेजर पोस्टिंग करेंगे जनरल एंट्रीज के बेस पे। लेजर पोस्टिंग के बाद क्या करेंगे, उनकी बैलेंसिंग करेंगे, मतलब जो साइड टोटल जिसका ज्यादा उसका टोटल कर दीजिए, जो साइड वीक है अपनी तरफ से अमाउंट सप्लाई कर दीजिए। अगर सपोज क्रेडिट साइड का टोटल 10,000 है और डेबिट साइड का सिर्फ 2000 है, तो डेबिट साइड में 8000 सप्लाई कर दीजिए। वो होगा क्लोजिंग बैलेंस, जैसे आप लिखेंगे टू बैलेंस सीडी या बाई बैलेंस सीडी, या टू क्लोजिंग बैलेंस या बाई क्लोजिंग बैलेंस, वट एवर यू लाइक, या स्कूल में जैसा भी सिखाया जाए, उसे बोलते हैं लेजर्स को बैलेंस करना। लेजर्स की बैलेंसिंग के बाद, उनके क्लोजिंग बैलेंसेस कैलकुलेट करने के बाद, आप एक A4 का शीट उठाइए, प्लेन शीट उठाइए, और उसके बेस पे आप क्या बना दीजिए, उसके बेस पे बनेगी ट्रायल बैलेंस। अब मैं बताता हूँ कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगी, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल ये कैपिटल अकाउंट है, यहां पर आ गया टू बैलेंस सीडी 5000। ये आपका कैश अकाउंट है, यहां पर क्रेडिट साइड में आ रहा है बाई बैलेंस सीडी 6000। और सपोज ये सैलरी अकाउंट है और उसके क्रेडिट साइड में आ गया बाई बैलेंस सीडी 1000। तो आपने देखा किसी का बैलेंस सीडी डेबिट साइड में आ रहा होगा, किसी का बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में आ रहा होगा, तो उनकी अलग से एक लिस्ट बनाई जाएगी क्लोजिंग बैलेंसेस की, कि सैलरी का क्लोजिंग बैलेंस कितना 1000, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कितना 5000, कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना सपोज 9000। आप इनकी लिस्ट बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंसेस हर एक अकाउंट के कितने कितने हैं, उसके बेस पे बना दिया जाएगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में अभी आपको बता रहा हूं कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाएगा। Generally, trial balance is prepared in the T shape. T shape में क्या होगा, देखिए ट्रायल बैलेंस हमेशा लिखा जाता है एज ओन, क्योंकि ये पर्टिकुलर डे पे बनना है 31 मार्च 2020। वैसे तो 21 चल रहा है, सपोज 2021 कर दिया, तो आप यहाँ करें, क्या करेंगे, जितने भी सीडी जो क्रेडिट साइड से, अगर किसी अकाउंट का बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में जा रहा है, व्हाट इट मीन्स कि उस अकाउंट की डेबिट साइड स्ट्रॉन्ग है, क्रेडिट साइड वीक है, क्योंकि बैलेंस सीडी या क्लोजिंग बैलेंस को हमेशा वीकर साइड को जरूरत पड़ती है, स्ट्रॉन्ग वाले को थोड़ा जरूरत पड़ती है। तो सपोज इसको एक टेक्निकली एक और बोला जाएगा, सपोज ये आपका अकाउंट है परचेजेस अकाउंट, यहाँ डेबिट साइड में टोटल आया 1000 और क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं था, तो आपने क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस सीडी 1000 रुपीज लिख दिया, ये इसका था क्लोजिंग बैलेंस, या इसे लिखेंगे और बाई क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि बाई लिखना जरूरी होता है आगे, और यहाँ पर प्रीफिक्स लगाया था 2। इस परचेजेस अकाउंट का स्टेटस क्या होगा, दिस परचेजेस अकाउंट इज कैरिंग डेबिट बैलेंस। जब मैं टेक्निकली बोलता हूं कि परचेजेस अकाउंट इज कैरिंग डेबिट बैलेंस, इसका मतलब इसका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। अगर मैं कहता हूं कि सपोज सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा ज्यादा होता है, तो अगर ज्यादा होगा तो हम क्या बोलेंगे कि सेल्स अकाउंट कैरीज क्रेडिट बैलेंस। सेल्स अकाउंट कैरीज क्रेडिट बैलेंस मीन सेल्स अकाउंट का मतलब लेजर में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है।
एज कंपेयर टू डेबिट। तो ये जितने भी क्लोजिंग बैलेंस है इनकी लिस्ट को हम टी शेप प्रेजेंटेशन में लगा देते हैं, जिसे बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। अगर आप क्रेडिट से उठाएंगे तो इसको आप डेबिट साइड में लिख देंगे। कैंची स्टाइल होती है ना, जैसे सीजर्स होते हैं ब्लेड्स, एक ब्लेड यहां से स्टार्ट होता है उसका हैंडल और कॉर्नर दूसरी साइड पे जाता है, ठीक इसी तरीके से परचेजेज अकाउंट का जो है क्रेडिट साइड से अगर आप उठाएंगे तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में आप इसे 1000 रुपीज लिख देंगे, अगर ट्रायल बैलेंस आपका टी शेप चल रहा है। जैसे ये ट्रायल बैलेंस है, आपने यहाँ 1000 लिख दिया, और ऐसी कैश अकाउंट का बैलेंस सीडी आपने 6000 लिख देंगे। ठीक इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट का सीडी है 5000 मींस क्लोजिंग बैलेंस है, और सेल्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या था 2000 आपने लिख दिया, और दोनों साइड का टोटल कितना हो गया 7000। और नीचे हमेशा जो क्लोजिंग बैलेंस जो जर्नल एंट्रीज के नीचे फुट नोट्स में लिखा, तो यहाँ पे फुट नोट्स में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019 20 व्हाटएवर इट इज, दैट इज 400। अब एक बार फिर मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करवाता हूँ, इस समय काफी मुझे लगता है कि जंबल हो गया होगा, मैस हो गया होगा आपके माइंड में, क्योंकि ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको पास ऑन की गई आज की डेट में। क्योंकि कुछ लोग आज इस समय छोड़ने जा रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स लोग हैं आज की क्लास के बाद, सो आई हैव टू कवर इट वेरी फास्ट, सो प्लीज गिव मी 2 मिनट्स मोर। ठीक है, इसका मैं साइकिल एक बार फिर रिपीट करता हूँ। इसमें क्या होगा कि ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्रीज बना दी जाएंगी। आप एक बाजार से जर्नल लेके आइए, प्री प्रिंटेड रजिस्टर आपको मिल जाएगा, सारी जर्नल एंट्री बनाते जाइए, और उसके बाद क्या कीजिए कि जितने भी जर्नल एंट्रीज में डेबिट क्रेडिट में अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट ऑफ द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन जर्नल एंट्रीज। और उस जर्नल एंट्री में लिस्ट में ना तो कोई अकाउंट रिपीट करना है और ना ही कोई अकाउंट मिस करना है। और उसके बाद आप जो है टी शेप लेजर्स बनाएंगे, उन लिस्ट के सारे अकाउंट्स खोलेंगे, और उसके बाद यू विल स्टार्ट लेजर पोस्टिंग। और एक लेजर में कई बार क्या होता है कि डेबिट साइड में 20 आइटम्स आ रही हैं, क्रेडिट साइड में 100 आइटम्स आ रही हैं, डजंट मैटर। आप उसको उसके बाद क्या करेंगे, उन लेजर की बैलेंसिंग करेंगे। लेजर की बैलेंसिंग का मतलब दोनों साइड के टोटल करेंगे, जिस साइड का टोटल वीक होगा उसको एक अमाउंट सप्लाई कर देंगे ताकि दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाए। वो जो अपनी तरफ से अमाउंट सप्लाई करेंगे उसे बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस या बैलेंस शीट। तो उसकी एक फिर अलग से लिस्ट बनाई जाएगी क्लोजिंग बैलेंसेस की, जिसके क्लोजिंग बैलेंसेस डेबिट साइड में है, इसका मतलब उसका क्रेडिट साइड डोमिनेट कर रहा है, इसका मतलब दैट अकाउंट इज कैरिंग क्रेडिट बैलेंस, मतलब क्रेडिट साइड उसकी हैवी है। ट्रायल बैलेंस बनाई जाएगी, ये उसका फॉर्मेट होगा, ये भी टी शेप में बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, फिर वर्टिकल लाइन बनाइए सेंटर में, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 कॉलम बन जाएंगे पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, और ठीक राइट हैंड साइड पे भी ऐसे होगा पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। इसमें क्या आ जाएंगे, जो सीडी होंगे हर एक अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेज होंगे वो इसमें लिख दिए जाएंगे। जो आप क्रेडिट साइड से उठाएंगे उन्हें आप डेबिट साइड में लिख दीजिए। ये जितने भी आइटम्स हैं कैश पर, ये सारी डेबिट बैलेंसेज है, इन्हें बोलते हैं डेबिट बैलेंसेज। और यहाँ पर जो है लिखा जाता है क्रेडिट बैलेंसेज। अगर मैं ये भी कहूँ कि पर्टिकुलर्स की बजाय अगर ये अप्रोप्रिएट लिखा जाए कि डेबिट बैलेंसेज एंड क्रेडिट बैलेंसेज, तो और ज्यादा अप्रोप्रिएट लैंग्वेज हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पर मैं पर्टिकुलर्स को मान के चलता हूँ डेबिट बैलेंसेस, और ये पर्टिकुलर्स को मान के चलता हूँ मैं क्रेडिट बैलेंसेस। तो ये सारी डेबिट बैलेंसेस की लिस्ट होगी और ये क्रेडिट बैलेंसेस की लिस्ट होगी, और ये दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल होगा। अगर इन दोनों साइड का ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं है, इट मींस कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ कर दिया उसमें। तो अगर कोई आपसे कहे कि अगर ट्रायल बैलेंस अगर आपके दोनों साइड्स के टोटल इक्वल हो गए, इट मींस टिल नाउ द अकाउंटिंग इज राइट, यस आंसर होगा राइट। अगर ट्रायल बैलेंस मिल गई तो दैट्स अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन कि अकाउंटेंट्स आप बड़े परफेक्ट हैं। और अगर आप आजकल तो खैर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग चल रही है, और पहले जो अकाउंटेंट होते वो 31 मार्च को बड़ी बुरी हालत होती है उनकी, वो कई बार तो बेचारे रात को आते ही नहीं थे 1-2 दिन, क्योंकि उनकी ट्रायल बैलेंस अटकी होती थी। और ये इनकी जो बैंक वाले होते हैं इनकी रोज की ट्रायल बैलेंस बनती है। ये तो ट्रायल बैलेंस 31 मार्च को बनती है, पर बैंक वालों की रोज बनती है क्योंकि कोई एरर ना हुई हो किसी में। तो बैंक का भी अगर ट्रायल बैलेंस, आजकल तो खैर कंप्यूटराइज्ड है, हमारे टाइम में क्या होता था कि ट्रायल बैलेंस जो रोज बनती थी बैंक की, उसमें रोज वो बैठे रहते थे, कई बार तो रात को 12-12 बज जाते थे कि ट्रायल बैलेंस अटकी है, कोई मतलब 500 रुपए का फर्क आ रहा है। और जब तक ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगी बैंक वालों को अलाउड नहीं होता था घर जाना, चाहे वो उनको ओवर टाइम मिल जाया करता था, पर ट्रायल बैलेंस डेली की डेली बना करती थी। तो इसकी जो है ट्रायल बैलेंस हमारी फर्म्स की वो 31 मार्च को हर साल बनाई जाती है ऑन द डे ऑफ क्लोजिंग। तो ट्रायल बैलेंस इज नथिंग, दिस इज द लिस्ट ऑफ द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ डिफरेंट लेजर्स।
तो ये भी डेफिनेशन में लिख सकता हूँ। और नीचे क्लोजिंग स्टॉक जरूर लिखा जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक आज कितना था। ये गलती से 2019 लिख दिया गया, जबकि होना चाहिए 2020। इफ एनी लेजर, अब मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इफ एनी अकाउंट और एनी लेजर हैज स्ट्रॉन्गर डेबिट साइड, इट इज सेड इट कैरीज डेबिट बैलेंस। मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि लेजर्स के बड़े कम चांसेस होंगे टोटल इक्वल होंगे दोनों साइड के। हो सकता है एक आधे अकाउंट में आप देखें दोनों साइड्स के टोटल इक्वल हो गए, पर जनरली कम, ऐसा होता नहीं है। तो जो साइड स्ट्रॉन्गर होगी उससे यही बोलाएगा, इफ एनी अकाउंट और लेजर हैज स्ट्रॉन्गर डेबिट साइड, किसी की डेबिट साइड स्ट्रॉन्गर है और क्रेडिट साइड वीकर है, तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो टेक्निकली क्या बोलेंगे कि दिस अकाउंट कैरीज डेबिट बैलेंस, नॉट बैलेंसेस, डेबिट बैलेंस। और इफ एनी अकाउंट और लेजर हैज ए स्ट्रॉन्गर क्रेडिट साइड, अगर ये किसी की क्रेडिट साइड स्ट्रॉन्गर है, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल याद है, सो इट इज सेड द अकाउंट कैरीज क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट वीक है तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में जाएगा। ऑल लेजर्स एंड अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन द डे ऑफ क्लोजिंग एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल, ये हम पहले ही बता चुके हैं। और दूसरी बात है कि ऑल क्लोजिंग बैलेंसेस आर कैलकुलेटेड on the day of the closing at the end of the accounting cycle. Then accounting cycle must end on the day of the closing after 1 year as per accounting period concept. आप जानते हो ना accounting period concept क्या होता है कि books must be closed after every 12 months on a particular day. और हमारे इंडिया में बुक्स कब बंद होती हैं? 31 मार्च को। किस वजह से साल के साल 6 महीने बाद ही क्यों नहीं बंद कर देते? आफ्टर 3 months क्यों नहीं बंद कर देती किताबें? नहीं, books are always closed on the 30 after 12 months, period of 12 months as per law. as per उस लॉ का नाम क्या है, कानून का नाम क्या है, नियम का नाम क्या है? accounting period concept. All balancing figures of the ledgers are calculated on the day of closing. कभी भी क्लोजिंग बैलेंस, आप ये नहीं कि आज खाली बैठे हो तो आप क्लोजिंग बैलेंस से निकाल लो, नो, क्लोजिंग बैलेंसेस हमेशा ऑन द डे ऑफ क्लोजिंग कैलकुलेट किए जाते हैं। मींस दोनों साइड के टोटल किए जाते हैं, जिस साइड का टोटल वीक होता है वहां एक अमाउंट सप्लाई किया जाता है जिसे बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस, उस अमाउंट को बोलते हैं, वो हमेशा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल किया जाता है। सो दिस वाज एपिसोड नंबर 3. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एपिसोड नंबर 4. द लेफ्ट साइड ऑफ द लेजर इज कॉल्ड डेबिट साइड। मैंने पहले बताया था कि हर एक लेजर क्या होता है, अकाउंट का लेजर बनाया जाता है, टी शेप बनाया जाता है, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड, ये आप जानते हैं अच्छे तरीके से। देन इफ एनी अकाउंट और या इफ एनी लेजर हैज बीन पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड, अब देखो अकाउंट और लेजर में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, लेजर पोस्टिंग में एक ही बात है। इफ एनी अकाउंट हैज बीन पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड, या मैं कहूं इफ एनी लेजर हैज बीन पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड, एक ही बात है। Posted on the debit side, it means the amount has been written on the debit side of the ledger, means left hand side पे लिखा गया अमाउंट कॉलम। अगर मैं सैलरी अकाउंट में डेबिट साइड में 5000 रुपीज लिख देता हूँ, टेक्निकली क्या बोलूंगा, सैलरी अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय ₹5000, या सैलरी अकाउंट हैज बीन पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड बाय ₹5000। ये टेक्निकल लैंग्वेज होगी। ये लैंग्वेज का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज आपको नए जो आगे चैप्टर्स आएंगे अकाउंटेंसी के, वो ये क्लियर होंगे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। If any account has been debited, it means the amount has been written on the debit side of the ledger in the amount column. मैं पहले कह चुका हूं। For example, when you are asked to debit a wages account by ₹300, अगर आपको ये कहा जाए कि wages account को 300 में डेबिट कर दीजिए, आप क्या करेंगे? खड़क से wages account बनाएंगे, उसमें लेजर वाली बुक में जिसे प्रिंसिपल बुक का बोला जाता है, उसकी डेबिट साइड में आप क्या लिख देंगे? 300 अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। आप कहोगे लो जी, मैंने जो है वेजेस अकाउंट को 300 से डेबिट कर दिया या डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया। सपोज ये जनरल एंट्री आपकी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 300, तो आप इसी लेयर पोस्टिंग कैसे करेंगे? इस जनरल एंट्री में वेजेस अकाउंट कितने से डेबिट हुआ है? 300 रुपीज से। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेजेस अकाउंट खोलना पड़ेगा और वेजेस अकाउंट को 300 से डेबिट करना पड़ेगा। तो ये वेजेस अकाउंट है, डेबिट साइड में आपने लिख दिया 300, और नरेशन में क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स में? टू कैश अकाउंट, क्योंकि जब कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था उसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हो रहा था? टू कैश अकाउंट। देन इसमें और कौन सा हो रहा है? कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो जनरल एंट्री में कैश अकाउंट भी खोला जाएगा जो कि 300 से क्रेडिट हो जाएगा, मींस क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। बी केयरफुल, जो मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा, ये थोड़ी सी कंसंट्रेशन चाहिए होगी इसमें।
ये जैसे कैश काउंट है, जनरल एंट्री थी वेजेस काउंट डेबिट टू कैश काउंट 300, सो ये नीचे कैश काउंट है, पर्टिकुलर्स वगैरह साइड में थोड़ा सा कटा हुआ है, और क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया 300, हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया, और क्या लिख दिया, बाई वेजेस काउंट 300 रुपीज। ये थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग बिगड़ी हुई है, पर आप जब बुक लेंगे उसमें ये फॉर्मेटिंग वो नहीं है, क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन दिस, इसके अंदर क्वेश्चन बैंक जो है ऐड किया जा रहा है, इसलिए वी आर वर्किंग ऑन द फॉर्मेटिंग, तो वही चलती हुई बुक को मैं जो है यूज कर रहा हूँ, पर आपकी वो जो बुक है वो पीडीएफ फाइल में है, सो दैट इज परफेक्ट। On the day of closing, means 31st March, totals are made on the both sides for every T-shaped ledger. Ledger आप जानते हो हमारा T-shape होता है. To make both sides equal, amount is supplied to the weaker side so that the both sides get equal. और इसे बोलते हैं ledger को बैलेंस करना. उसमें क्या किया था 31st मार्च को, दोनों साइड का टोटल किया था, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, और जो साइड का वीक होता है उस साइड पे अमाउंट सप्लाई कर दिया जाता है, और उसे क्या बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस या बैलेंस शीट। और द क्लोजिंग बैलेंस इज द बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर क्या होता है, एक ऐसी फिगर सप्लाई करना जिससे दोनों साइड्स बैलेंस हो जाए, जिससे दोनों साइड्स इक्वल हो जाए, उसे बैलेंसिंग फिगर भी बोला जाता है। अगर सपोज सैलरी अकाउंट का क्रेडिट साइड में 10,000 टोटल है और डेबिट साइड में 1,000 है, तो क्रेडिट साइड में 10,000 है, डेबिट साइड में 1,000 है, तो डेबिट साइड वीक है, तो डेबिट साइड में आप 9,000 रुपीज सप्लाई करेंगे, उस 9,000 की जो फिगर है उसे बैलेंसिंग फिगर भी बोला जाता है। All closing balances of the ledgers are taken to the trial balance। मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रायल बैलेंस टी शेप होगी जनरली, ऐसा नहीं है, आजकल और बड़े स्टाइल्स होते हैं, हम आपको बड़ी बेसिक से सिखा रहे हैं कि टी शेप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और जितने भी लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे उनको ट्रायल बैलेंस में ले जाएंगे। और ट्रायल बैलेंस is always prepared on the day of closing, only at the end of the financial year। आप जानते हैं ये फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल टू 31। हमारा जो ग्रेगोरियन ईयर होता है वो होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है, पर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को क्लोज होता है। और ट्रायल बैलेंस इज बेसिकली द हाउस ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ ऑल लेजर्स। कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि ट्रायल बैलेंस द हाउस ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेज। Then if the totals of both sides of the trial balance are equal, we assume that all accounting was done correctly till now। हम ये मान लेते हैं अकाउंट ट्रायल बैलेंस मिलता अगर मिल गई तो इसका मतलब अकाउंटिंग ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी है, दैट्स अ मैटर ऑफ चीयर्स सेलिब्रेशन। तो अकाउंटेंट बड़ा खुश होता है, क्योंकि कई बार तो क्या होता है कि एक एक दो दिन ट्रायल बैलेंस नहीं मिलते और अकाउंटेंट बड़े परेशान होते हैं। जो पहले मैनुअल अकाउंटिंग होती थी, क्योंकि ये कंप्यूटर अकाउंटिंग पिछले 10-12 सालों से है, उससे पहले मैनुअल अकाउंटिंग होती थी, और जो अकाउंटेंट होते थे वो 31 मार्च को तो उनकी हालत खराब होती थी, क्योंकि उनकी ट्रायल बैलेंस अटकी होती थी, कहीं ना कहीं कोई गलती कर बैठते थे और ट्रायल बैलेंस अटका बैठते थे और बैठे होते थे, बड़ी हालत खराब होती थी उनकी। तो आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल कंप्यूटराइज्ड चलती हैं, तो कंप्यूटराइज उन्हें बैलेंस कर देता है। अगर कोई एरर होती भी है तो कंप्यूटर बता देता है। उसमें क्या होता था, हर एक जर्नल एंट्री चेक करनी पड़ती थी, लेजर पोस्टिंग, सबके टोटल्स चेक करो, कहीं टोटल में सबकी बैलेंसिंग फिगर चेक करो, कहीं अमाउंट गलत तो शिफ्ट नहीं होगा, काफी मेहनत करनी पड़ती थी। So if totals of both sides of trial balance are equal, we assume that all accounting was done correctly till now. So ledger posting episode number 4 is finished. Now we are going to episode number 5. Ledger posting and trial balance episode number 5. तो एक बार फिर आपको याद दिला दें कि अकाउंटिंग साइकिल क्या था। अकाउंटिंग साइकिल में क्या होता है, ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्रीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और जर्नल एंट्रीज को लेजर पोस्टिंग में और लेजर पोस्टिंग को के बेस पे ट्रायल बैलेंस बनाती है और ट्रायल बैलेंस के बेस पे बना दिया था फाइनल अकाउंट्स। तो आपको पता ही है कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, आप एक रजिस्टर खरीद के लाएंगे। 2 रजिस्टर आपको खरीदने पड़ेंगे। आप बाजार में जाएंगे, अगर आप ये वाला साइकिल अडॉप्ट किया हुआ आपने, एक जर्नल का आप रजिस्टर ले आइए और एक लेजर का ले आइए। जर्नल एंट्रीज के रजिस्टर को बोला जाता है जर्नल, या जर्नल प्रॉपर भी बोला जाता है, और लेजर पोस्टिंग की जो बुक होती है उसे प्रिंसिपल बुक भी बोला जाता है। तो उसके बाद क्या होगा कि आप जर्नल एंट्रीज के बेस पे 31 मार्च को क्या करेंगे, लेजर्स खोल देंगे लिस्ट बना के, और सारे लेजर्स पोस्टिंग करने के बाद उनको बैलेंस करेंगे, मतलब सबके सीडी निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, और सारे क्लोजिंग बैलेंसेस को क्या कर देंगे, आप ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे। और ट्रायल बैलेंस के नीचे क्या लिख दिया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाया जाएगा,
फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या होगा? फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट भी होगी, वो अभी सिखाई जाएगी, और उसमें प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ लेजर पोस्टिंग मींस जब जर्नल एंट्री से अमाउंट शिफ्ट किया था लेजर पोस्टिंग में, एट द टाइम ऑफ लेजर पोस्टिंग द अमाउंट ऑफ द डेबिट कॉलम इन द जर्नल एंट्री गोज टू द डेबिट कॉलम ऑफ द लेजर। डेबिट क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज एट द रिटन एट द फुट नोट्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस। मैंने पहले भी बताया था, पहले एक तो क्लोजिंग स्टॉक किसके फुट नोट्स में लिखा जाता है? जर्नल एंट्रीज के। जब 31 मार्च को आप स्टॉक टेकिंग करेंगे, जो भी उसकी वैल्यू निकलेगी, जो जर्नल एंट्रीज का रजिस्टर होगा, उसके फुट नोट्स में जहां लास्ट खत्म होगी जर्नल एंट्री, उसके नीचे लिख दिया था क्लोजिंग स्टॉक है, तो लास्ट की जर्नल एंट्री होगी उसके नीचे, और उसके बेस पे लेजर पोस्टिंग होगी, लेजर पोस्टिंग के बेस पे ट्रायल बैलेंस बनेगी, और ट्रायल बैलेंस के नीचे फुट नोट्स में क्या लिख दिया जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। So ledger posting and trial balance episode 5 is over. We are going to start episode number 6. Ledger posting and trial balance episode number 6. इसमें जिक्र किया गया इसमें किस चीज का? ट्रायल बैलेंस एपिसोड में, वीडियो में, carries inward is an expense that is nominal account and its closing balance is shown on the debit side. आप देखोगे ट्रायल बैलेंस की एक खासियत होगी, जितने भी अगर सपोज फॉर एग्जांपल जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपको ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में नजर आएंगे। होता है ना डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, आपको डेबिट साइड का, ट्रायल बैलेंस की डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती। डेबिट साइड में सिंपली थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बोल रहा हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ द डेबिट बैलेंसेस, दिस इज द लिस्ट ऑफ द क्रेडिट बैलेंसेस। तो आपको ट्रायल बैलेंस की डेबिट बैलेंसेस में मिलेंगे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे एंड लॉसेज होंगे, और परचेजेज आपको हमेशा डेबिट साइड में मिलेंगी, सेल्स क्रेडिट साइड में मिलेंगी, एक्सपेंसेस डेबिट साइड में मिलेंगी, इनकम्स क्रेडिट साइड में मिलेंगी, एसेट्स डेबिट साइड में मिलेंगी, कैपिटल एंड लायबिलिटीज क्रेडिट साइड में मिलेंगी। एक खासियत होगी, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कैपिटल आपको डेबिट साइड में मिले, और ऐसा नहीं होगा कि कैरीज कभी आपको क्रेडिट साइड में मिले, क्योंकि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है ना, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस वो हमेशा आपको डेबिट साइड में मिलेंगे, और दोनों साइड का टोटल इक्वल होगा। कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। अच्छा, ये जितने भी लेजर लिस्ट बनेगी, ये 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, या तो इन्हें बोला जाता है नॉमिनल अकाउंट, या बोला जाता है पर्सनल अकाउंट्स, या बोला जाता है रियल अकाउंट्स। जस्ट अ मिनट। पर्सनल अकाउंट होता है किसी भी पार्टी का जो अकाउंट हो, किसी भी पर्सन का, फर्म का, कंपनी का, ये जो अकाउंट्स होते हैं वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। जैसे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट किसका? दिस इज द अकाउंट ऑफ द ओनर, राम्स अकाउंट, एज अकाउंट, राहुल्स अकाउंट, रहेजा बिल्डर्स अकाउंट, राइट। तो मुनीश एंड कंपनी अकाउंट, ऐसे भी आपने देखे होंगे, कई फर्म के नाम देखे होंगे। क्लासिक बुक स्टोर, ये सारे पर्सनल अकाउंट है, बिकॉज दीज आर द अकाउंट्स ऑफ पर्सन्स, फर्म्स और कंपनीज और इंस्टीट्यूट्स। और जितने भी एक्सपेंसेस अकाउंट होते हैं, कैरीज अकाउंट या इनकम्स अकाउंट होते हैं, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, रेंट पेड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट पेड अकाउंट, कैरीज अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट, ये इन्हें बोला जाता है नॉमिनल अकाउंट। और जो एसेट्स अकाउंट होते हैं, एसेट्स अकाउंट कौन से होते हैं? जैसे फर्नीचर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, इन्हें बोला जाता है रियल अकाउंट। तो ये जितने भी अकाउंट्स होंगे आपको लिस्ट नजर आएगी, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, ट्रायल बैलेंस की नजर आएंगी। तो ये 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, या तो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, या रियल अकाउंट्स होते हैं, या पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। ड्रॉइंग्स अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या कहलाएगा? पर्सनल अकाउंट का है। ऑलवेज अपीयर ऑन द डेबिट बैलेंसेस ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंसेस की तरफ नजर आएगा। कैपिटल आपको हमेशा क्रेडिट साइड में नजर आएगा ट्रायल बैलेंस के, और ड्रॉइंग्स अकाउंट हमेशा डेबिट साइड में नजर आएगा। So episode number 6 is over. We are going to episode number 7. After completing ledger posting, a particular amount, जिसे gap amount बोलते हैं, is supplied to the weaker side of the ledger, so that the totals of both sides become equal. ये हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। जनरल एंट्री के बाद लेजर पोस्टिंग होगी, लेजर पोस्टिंग के बाद उसकी बैलेंसिंग होगी। बैलेंसिंग का मतलब जो साइड वीक हो गई उसको अमाउंट सप्लाई किया जाएगा, और उसे बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर या बैलेंस सीडी। दैट सप्लाइड अमाउंट इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस और बैलेंसिंग फिगर और बैलेंस सीडी। इट इज कॉल्ड द क्लोजिंग ऑफ द लेजर और अकाउंट। सीडी मींस कैरिड डाउनवर्ड, ये पहले हम बता चुके हैं।
नाउ एपिसोड नंबर 8, ओपनिंग बैलेंस और बैलेंस बीडी इज वन एंड सेम थिंग। अच्छा, ध्यान रहे कि आज हमने प्रिंसिपल बुक फॉर एग्जांपल बनाई और उसके बेस पे क्या बना दी, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बेस पे क्या बन जाएंगे, फाइनल अकाउंट, जिसमें बैलेंस शीट वगैरह बनाएंगे जो अभी आपको नहीं सिखाई गई। और अगले दिन जब स्टार्ट होगा, नया साल स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2021 को, जो बैलेंस शीट की फिगर्स होती हैं उसकी ओपनिंग जनरल एंट्री बन जाती है, और ओपनिंग जनरल एंट्री के बेस पे ही लेजर्स खुल जाते हैं और वो ओपनिंग बैलेंसेस कहलाते हैं। और उन्हें जो बैलेंस शीट, फॉर एग्जांपल आज सैलरी अकाउंट का, सपोज आपका फर्नीचर अकाउंट का बाई बैलेंस शीट 10,000 है, वो अगले दिन 2 बैलेंस बीडी 10,000 रुपीज बन जाएगा। क्या इट्स नॉट सो सीरियस, अभी आप इसको रहने दीजिए ओपनिंग वगैरह के लिए। एंड जब ये बोलते हैं कि एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर मींस व्हेन बुक्स आर क्लोज्ड एंड ट्रायल बैलेंस इज क्लोज्ड, जब भी अगर ये बोलते हैं कि टुडे इज द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड का मतलब क्या है, 31 मार्च, और उस दिन बुक्स क्लोज होती हैं। बुक्स क्लोज होने का मतलब उस दिन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर की जा रही है। सो एपिसोड नंबर 8 इज ओवर। नाउ टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द लेजर मींस टू सप्लाई द अमाउंट टू द वीकर साइड ऑफ द लेजर। इसमें भी, इस वीडियो में भी यही वाली बात कही गई है। तो मेरे ख्याल से ये द थिंग्स आर ओवर नाउ। मुझे नहीं लगता कि इसके आगे कुछ और मिलने वाला है। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकंड साइकिल। अब ये ट्रायल बैलेंस के ऊपर फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाए जाएंगे, ये हमारी जो है बाद में नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। और आई विल मींस सजेस्ट यू शुड कंटिन्यू द क्लासेस। आपको थोड़ा सा हो सकता है कुछ चीजें ना समझ आ रही हैं, क्योंकि दिस कोर्स इज गोइंग वेरी वेरी फास्ट, इसमें खैर कोई दो राय नहीं है। और हो सकता है कि 11th के स्टूडेंट्स को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, पर आप देखो ना 20 आवर्स में लगभग 1/3 कोर्स खत्म करने जा रहा हूँ मैं 11th का, तो प्रॉब्लम तो आएगी। Anyhow, today I'm going to end the class today, and tomorrow I'm going to start the third cycle. वो होगा सब्सिडरी बुक्स का कि उसे कैसे बनाया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात है कि जो जनरल एंट्रीज वाला अकाउंटिंग साइकिल भी नहीं अडॉप्ट किया जाता है कहीं, इसे नहीं अलाउ करता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जबकि ये डबल एंट्री सिस्टम है, पूरा टेक्निकल है, पूरा साइंटिफिक है, पर इस सेकंड साइकिल को भी आप हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करता। एक थर्ड साइकिल है, लगभग उतना ही पैरेलल है, पर जनरल एंट्री इस साइकिल के थ्रू आपको डेबिट क्रेडिट का मैकेनिज्म समझ आ गया और ट्रायल बैलेंस समझ आ गया, इसलिए आपको यह मैनुअली सिखाया गया। बट सेकंड साइकिल इज नॉट अडॉप्टेड एनीवेयर, जबकि ये है डेबिट डबल एंट्री सिस्टम पे ही चल रहा है, पर फिर भी इसे नहीं दिया जाएगा। तो अब इसके बाद थर्ड साइकिल स्टार्ट होगा हमारा कल संडे वाले दिन, सब्सिडरी बुक्स। और सब्सिडरी बुक्स के बाद फाइनल अकाउंट्स लेके आपको कंप्लीटली अकाउंटेंसी पता चल जाएगी, ओवरऑल व्यू पता चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अकाउंटेंसी में एक्सपर्ट हो जाएंगे, बट अकाउंटेंसी की जब भी कोई बातचीत चल रही होगी आपको बात समझ आनी शुरू हो जाएगी। और आप किसी भी क्लास में बैठो, आप चाहे हायर क्लास में भी सीए की क्लास में बैठोगे, आपको बात समझ आनी शुरू हो जाएगी कि टीचर सामने क्या बोल रहा है, तो वो सिचुएशन खत्म हो जाएगी कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट अकाउंटिंग। तो मेरा जो ये मकसद यही था कि ओवरऑल जिसे बोलते हैं ना बर्ड्स आई व्यू, ड्रोन से दिखा देना कि ये कैसा शहर है, तो वही मैं कर रहा हूँ। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा स्ट्रगल भी करना पड़ रहा हो, पर अगर आप पैरेलल अगर आप वीडियोस देखते हैं और ये ई बुक पढ़ते हैं तो आई थिंक आई एम श्योर आपको 100% समझ आना शुरू हो जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस इवनिंग। बाय बाय।